So, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Dr. Sir. Sandeep. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. So here we go. Our third session, which is in a spine, basically, and we have a lot of requests comes on email also that lower limb you can take separate. We will try to finish as much as we can today and give you time for your question and answer also. So it will be little bit little bit fast session. If you didn't understand or anything, please raise your hand so we can repeat that point particularly for that thing only. And your questions, please ask me last. So when you ask me in the Q&A session, it will be answered properly also. So here we go. This is our center, UPSC National Therapy Center, Abu Road, Rajasthan. Just now, Neha ma'am told you about this, and this is a very beautiful center where you get your pain and ache cured by the natural therapy and exercises way, and other other complementary therapies also. Our vision is clearly for you people. We have already mentioned in last um, two of our sessions. This is our facilities which is available over there, and this is our motto that we should employ and give employment to the local people also over there. And on that we have, this is the one of the part of our center where we are getting a public awareness for the common diseases. In that series we have this joint pain and arthritis, which is started from 22nd July to 26th of July, and first session, second session already over, and now we are at the third session, which is osteoarthritis of the spine. So now we are all already introduced to everyone, and you and me are knowing now each other from the names. Also few of quite members are regularly on this platform and interact also with very good questions. So thank you very much for that, and thanks for your patient listening. Here we start with today's topic. Today's topic is osteoarthritis of the spine. So here you are seeing on your screen that there is a cervical spine anatomy. I'm just giving you the brief of anatomy, what is there in your spine. So our spine is made up of a four part, actually four part. People usually tell it is a three part, but it is a four part. First is your neck region. There are vertebrae, 7 vertebrae, C1 to C7. In C1 there is C1 C2 there is no disc, no spinal disc, but yes, in C2 to C7 there is spinal disc. Spinal disc means ये जो गद्दी बोलते हैं हम लोग, दो वर्टिब्रे के बीच में या दो मनके के बीच में ये जो आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर थोड़ा ग्रीनिश डिस्कलरेशन से जो डिस्क दिख रही है आपको, उसमें हम स्पाइनल डिस्क या वर्टिबल डिस्क कहती है. उसी के नीचे वाले फिगर में आप देखोगे जहाँ पे स्पॉन्डाइलोलॉसिस लिखा हुआ है. तो स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है कि ये जो डिस्क है उसके ऊपर प्रेशर आके, हमारे बोन का ही प्रेशर आके ये पीछे के तरफ या आगे की तरफ या साइड के तरफ उसका बाहर आना होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क बल्जिंग या बल्जिंग ऑफ द वर्टिबल स्पाइनल डिस्क. उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बोन्स के ऐसे नुकुले ऐसे हुए उसको हम स्पर्स बोलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है बोन की, या बिकॉज ऑफ डिसोलेशन ऑफ द बोन्स और कैल्शियम या मिनरल डेंसिटी कम होने की वजह से पोरनेस होने लगता है और उसको ऐसे छोटे छोटे स्पाइक्स आने लगते हैं. और उस स्पाइक के नीचे ये हमारी जो डिस्क है वो, और ये जो हमारी नर्व्स है उसको प्रेशर आने लगता है. तो अगेन द बोन इज स्पर्स ऑल्सो one of the cause of osteoarthritis or symptoms of the signs of the osteoarthritis. संधिवात के ये कुछ लक्षण या चिन्ह है. और उसके बाद जो लास्ट में होता है, अगर आप थर्ड उसी डायग्राम में थर्ड पार्ट में देखोगे जहाँ पे ये ब्लू कलर का डिस्कलरेशन दिख रहा है, वहाँ पे बहुत नैरो स्पेस हो गया है और वहाँ पे लिखा है नैरो डिस्क स्पेस. तो जब ये नैरो डिस्क स्पेस हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को गर्दन का पेन या स्पॉन्डिलोलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो बोले जाते हैं, और उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है या पेन उनको हो सकता है. ये बहुत बार ऐसे होता रहता है, और उसके वजह से क्या होता है उनको कि उनके हाथ में नमनेस आना, हेवीनेस आना, या वहाँ पे दर्द होना, या बार बार नेक के बाजू में आपको दर्द होना या हेवीनेस लगना, ये होता है. ये
बहुत सारा स्कूल के बच्चों में भी आजकल देखा जाता है जो कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं, उनमें भी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल में डेस्क वर्क करते हैं, आप लोगों जैसे सीए है, वकील है, एडवोकेट्स है, जो भी डेस्क के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर या फाइल वर्क करते हैं, जिनका काम बैठे बैठे होता है, नेक के नीचे झुका के होता है, बहुत सारे लोग जो अभी मोबाइल्स भी यूज करते हैं, उन लोग सभी में ये सारे दिक्कतें या ये सारे तकलीफें आपको दिखाई देती है। तब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है कि आप डायरेक्टली स्पॉन्डाइलोलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोलाइसिस में नहीं होते हैं, तब उसके स्टेजेस में होते हैं। और अगर वो स्टेज में अगर आप आते हो तो आपको ये प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती है, तब आपको लगता है कि नहीं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब आप एक्सरे करते, तब एकदम से आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे गर्दन के अंदर या मेरे स्पाइन के अंदर डिजनरेशन शुरू हो गया है, कैल्शियम कम होना शुरू हो गया है, उसके वजह से मेरे मेरे डिस्क पे प्रेशर आ रहा है या हेवीनेस लग रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट में। और आपको उसके लिए डॉक्टर साहब आपके जो रहते हैं वो डायग्नोसिस करके आपको दवाई या ट्रीटमेंट करते हैं या एक्सरसाइज बताते हैं, जिसकी वजह से आप ठीक होना शुरू हो जाते हो। लेकिन ये क्यों होता है, ये हम लोग आज देखते हैं। तो हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ और क्या क्या होता है। अगर आप पहले वाले, आपके ऊपर वाले पिक्चर में देखा हुआ है, जहाँ पे एक लेडी अपने गर्दन को पकड़े और वहाँ पे आप रेडनेस और थोड़ा सा पिंकीनेस मसल में देखोगे, तो वो स्पाज्म की वजह से होता है। या फिर वो ज्यादा तो आपको स्पाइन की वजह से होता है, या फिर आपको ज्यादा तो मुश्किल होती है इसके वजह से कि वहाँ पे हेवीनेस लग रहा है। तो ये पहली शुरुआत होती है नेक पेन की या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। तो इसमें ही अगर आप आके आपके डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो इसका जल्दी ठीक होना आसान होता है और ये सिम्टम्स बार बार आपको आते नहीं है। अगर आप देखोगे साइड वाले, राइट साइड वाले आपके, इसमें कि इसमें पूरा ह्यूमन स्पाइन बताया गया है, जिसमें जो पार्ट है वो है जहाँ पे गर्दन है, वहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रे बोले जाते हैं। आपके शोल्डर ब्लेड के यहाँ से नीचे आपके चेस्ट लेवल तक, वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ पे जो 13 वर्टिब्रे आगे नीचे रहते हैं, टोटल 12 वर्टिब्रे जो रहते हैं, उसको बोला जाता है थोरासिक वर्टिब्रे। उसमें 6 अपर थोरासिक वर्टिब्रे रहते हैं, 6 लोअर थोरासिक वर्टिब्रे रहते हैं। उसके बाद में आपको थर्ड पार्ट में 5 लंबार वर्टिब्रे रहते हैं, जो आपके कमर के लंबा वर्टिब्रे होते हैं। वो अच्छे खासे मोटे होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी भी ज्यादा होती है, उनकी डिस्क भी बड़ी होती है। और लास्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ तक ही समझते हैं कि हमारा स्पाइन है, लेकिन सर्वाइकल अपर, जैसे कि अगर आप उसके बाजू वाले फिगर में देखोगे या डायग्राम में देखोगे, जहाँ पे लेडी गर्दन पकड़ के खड़ी है, उनके नीचे वाले इसमें, तो वहाँ पे क्लियर कट मैंने लिखा है सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल वर्टिब्रे। थोरैसिक कर्व में जो 12 वर्टिब्रे है, वो टोटल 12 वर्टिब्रे वहाँ पे आपको थोरैसिक कर्व में दिखते हैं। फिर 5 वर्टिब्रे आपको लंबार कर्व में दिखते हैं, और नीचे जो रहते हैं वो सेक्रल वर्टिब्रे रहते हैं। वो भी नंबर ऑफ, इसमें अगर आप देखोगे तो 5 होते हैं, और उसी में जहाँ पे जो फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्रा होता है, वहाँ पे जो हम लेके वो जॉइंट और फ्यूज रहते हैं एक दूसरे से, और इसी को हम लोग हिंदी में माकड़ हाड़ बोलते हैं, या फिर सेक्रल बोन बोलते हैं इंग्लिश में। मराठी में भी हम लोग माकड़ हाड़ ही बोलते हैं, कि जहाँ पे आपको बैठने के आसपास थोड़ा सा प्रेशर आता है। और ज्यादा तो जो डिस्क प्रॉब्लम होती है, ये इसी के बीच में, लंबर कर्व और सेक्रल वर्टिब्रा, इसके बीच में, और आपके गर्दन के जो 7 वर्टिब्रे है पहले, उनके 6 वर्टिब्रों में, क्योंकि पहले और दूसरे वर्टिब्रे में डिस्क नहीं है, इसलिए सेकंड से लेके जो 7 तक है जिनमें डिस्क है, उसमें ही आपको दिखता है, ज्यादा तो आपको प्रॉब्लम होता है। अगर आप इसके अंदर देखोगे, आप उसके लेफ्ट साइड वाली जो डायग्राम है उसमें देखोगे, तो वहां पे नर्व रूट कंप्रेशन एक लिखा है। जो नर्व रूट कंप्रेशन होता है, वो भी डिस्क का बाहर निकलने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर आता है, और वहां पे ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर में दिखाया है। उसी को डिस्क हर्निएशन की वजह से, या डिस्क जो बाहर आता है, उसी प्रॉब्लम की वजह से ये होता है। और बहुत सारे लोगों को जो दिक्कत होती है, हाथ में नमनेस, मुंगी आना, या आपको पेन होना एक हाथ में, लेफ्ट में या राइट साइड में, वो ज्यादा तो ये डिस्क हर्निएशन की वजह से होता है, क्योंकि ये हर्निएशन आपके नर्व के रूट के ऊपर कंप्रेशन करता रहता है या दबाते रहता है, और इसी की वजह से आपको ज्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद अगर आप उसी डायग्राम में आपके राइट तरफ देखोगे, तो वहां पे फैसेट आर्थराइटिस लिखा है, और ऑस्टियोफाइट्स यानी बोनी स्पर्स, मीन्स
एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन दिखाई दी है वहां पे। तो उसके वजह से क्या होता है, या डिजोल्यूशन होता है वहां पे बोन का, उसके वजह से जो नर्व जाती है उस नर्व को आपको जो जगह रहती है वो नैरो हो जाती है, या उसको जो स्पेस होता है वो बहुत कम होने लगा था, उसके वजह से आपको कंप्रेशन आता है। और यही है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के लक्षण, या आपको सिम्टम्स या साइन इसके वजह से ही दिखते हैं। जब ये तकलीफ शुरू हो जाती है तब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या स्पॉन्डिलाइसिस है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो बहुत सारी बार आप लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हो तो आप ये पहले वाले नर्व रूट कंप्रेशन या डिस्क हर्निएशन के वजह से जाते हो, और उसके बाद जैसी एज 45 ईयर्स, मैंने पहले ही बोला 45 ईयर्स के आगे, अभी तो थोड़ा ज्यादा भी 40 के आसपास भी हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर वर्क ज्यादा हो रहा है। लोग आप देखोगे 35-40 वाले लोग भी अपने गले में एक सर्वाइकल कॉलर लगा के घूमते हैं। ट्रैवलिंग में उनको बोला जाता है कि आप सर्वाइकल कॉलर लगाए क्योंकि आपको तकलीफ होती है बाइक ड्राइविंग वगैरह में। तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से आप डॉक्टर को दिखाते हैं। 45 के बाद या 50 के आसपास जो तकलीफ होती है ये फैसेटल आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम होता है उसका शुरुआत होती है। लेकिन ये सारे अगर आप सही डायग्नोसिस करवा लो और सही ट्रीटमेंट लो तो आप प्रिवेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थोरैसिक स्पाइन है जो मैंने बताया था आपको, हमने गर्दन का देखा था, हमने नीचे लंबर स्पाइन भी देखा था। ये जो है हमारा पीठ के जो 12 वर्टिब्रे है उनकी उनकी रचना है। तो उसमें आप देखो कि एक बड़ा सा वर्टिब्रा है, उसके नीचे वर्टिबल डिस्क जो बोली है उसको ही स्पाइनल डिस्क बोलते हैं। और ये जो वर्टिब्रा है उसका जो आप स्क्वायर पार्ट देख रहे हो उसको बॉडी बोला जाता है। और ये बॉडी के बाजू में जो नीचे एक स्पाइनस प्रोसेस दिख रही है आपको, एक एक्सटेंशन दिख रहा है, उसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। अगर हम इसका और अच्छी तरह से अगर इसका निरीक्षण करेंगे तो आपके राइट साइड में जो पूरा एक वर्टिब्रा दिखा है उसमें अलग अलग पार्ट बोले। हमें इसके इतने डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन आपको ये पार्ट पता होना चाहिए कि क्यों कहाँ पे अगर कुछ हुआ तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए बॉडी जरूरी है। बॉडी इसको बोला जाता है वर्टिब्रल फोरामेन, जिसके अंदर से हमारा वर्टिबल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होता रहता है। उसके बाद हमारा जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो एक्सटेंशन है दोनों साइड में, उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोले जाते हैं, जो हमने स्पाइनस प्रोसेस बोली होती है। ये जो नुकीली आपको भाग सबसे ऊपर दिख रहा है तो उस डायरेक्शन में, जैसे अगर हमने साउथ ईस्ट नॉर्थ और साउथ किया, ईस्ट और वेस्ट किया, तो उसमें जो नीचे आ रहा है आपका साउथ डायरेक्शन में वो है आपका स्पाइनस प्रोसेस ज्यादा तो दिखता है। स्पाइनस प्रोसेस अगर आप आपके स्पाइन के ऊपर हाथ फिराओ तो भी आपको लगती है, बाकी के पार्ट इंटरनल साइड होने की वजह से आपको ज्यादा दिखते नहीं है। तो ये सारा बहुत सारे इसमें आपको चेंजेस आपके डिजेनरेशन जैसे होता है या डिजोल्यूशन या बोन मिनरल्स जैसे कम होने लगते हैं, वैसे वैसे आपको दिखाई पड़ता है। और ये आपको ज्यादा तो आपके सीनियर सिटीजन जो है उनके इसमें ये प्रॉब्लम्स दिखते हैं, या जो 50 के अबव है उनमें ये अगर उनके स्पाइन के एक्सरे या एमआरआई किए गए तो इनमें आपको ये सारे पार्ट्स दिखते हैं। और उसमें मेंशन उनके रिपोर्ट में भी ऐसे मेंशन रहता है कि यहाँ पे दिक्कत है। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लंबार स्पाइन। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो राइट साइड में जो आप देख रहे हो वो 5 वर्टिब्रे दिखाए गए हैं जिसमें आप देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 वर्टिब्रे बहुत ही मजबूत और ताकत वाले वर्टिब्रे रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरा कंट्रोल हमारे एब्डोमिनल मसल्स, साइड मसल्स और हमारे पीठ के मसल्स जो रहते हैं, इरेक्टर स्पाइने मसल्स, इनका पूरा यहाँ पे कंट्रोल रहता है। और इसमें क्या होता है कि आपको अगर ये लूज हो जाए तो इसका शेप आगे पीछे होना लगता है, और उसके वजह से भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है। जिनके पीठ निकल आए हुए उनमें आप देखोगे कि उनका स्पाइन थोड़ा अंदर की तरफ होता है, जिसे हम लंबार लॉर्डोसिस कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आगे पेट के मसल वीक होने की वजह से ग्रेविटी नीचे से पुल करती है, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा वेट आगे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ता है, और वो उसका नॉर्मल शेप जो रहता है, जो हमें भगवान ने दिया हुआ है नॉर्मल, जो उसका शेप और साइज और लेवल जो रहती है वो आगे आने की वजह से उसमें या उसमें एबनॉर्मलिटी होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने लंबार में मीन्स लोअर बैक में प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे नॉर्मल डिस्क दिखाई दी है दोनों वर्टिब्रे के बीच में, ये नॉर्मल डिस्क है। लेकिन हर्निएटेड डिस्क देखोगे तो देखो पीछे की तरफ से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ आपको एक पिंक कलर का हिस्सा दिखता है, जो ऊपर के वर्टिब्रे में कंप्रेशन होने की वजह से नर्व के ऊपर भी प्रेशर कर रहा है। जो येलो कलर्स में है वो सारे नर्व रूट है। अगर इसके ऊपर दर्द होता है तो आपको पैरों में या आपको
आपके साइड वाले बटक्स में या थाई में या ग्रॉइन में कहीं पे भी आपको ये तकलीफ शुरू होने के या फिर नमनेस होने के या हेवी होने के आसार दिखते हैं या साइंस या सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके सिवा फिर अगर आप देखोगे तो नीचे बोन्स में छोटे छोटे देखिए ऐसे नुकीले ये आए हैं, स्पर्स आए हैं, उनको बोन्स पर बोले जाते हैं। उनके वजह से भी आपको नर्व के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप सबसे नीचे सेक्रम के ऊपर देखोगे तो वहाँ डिजेनरेटेड डिस्क बोला है। तो अगर ये नॉर्मल शेप की जो डिस्क है उसका अगर डिजोल्वेशन शुरू हो गया या उसका डिजेनरेशन शुरू हो गया तो वहां पे स्पेस कम हो जाता है और उसके ऊपर वो दोनों बोन जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करना शुरू हो जाते हैं। इसके वजह से इसके लिए आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, पानी पीना, और आपका सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। और उसके वजह से फिर आपको यहाँ पे होने वाला फ्रिक्शन कम हो सकता है और वो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ये स्पेयर होके आपके स्पाइन पे अगर प्रेशर कर रहा है फिर आपको दर्द होना या वहाँ पे नमनेस होना या हेवीनेस होना शुरू हो जाता है। और इसका लास्ट जो 5 वर्टिब्रे बोले थे इसके साथ जो हम मंकी बोन बोलते हैं या माकड़हाड़ हिंदी में या मराठी में बोलते हैं, तो उसमें ये देखिए 1 2 3 और 2 नीचे छोटे बोन रहते हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, 5 5 इसका फ्यूजन रहता है। तो ये पूरा मिला के आपका लंबर स्पाइन, सेक्रल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन और थोरैसिक स्पाइन बनता है। इस सभी को हम लोग एक साथ बोलते हैं कि स्पाइन। लेकिन इसकी तकलीफ अलग अलग रीजन में होते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा अलग अलग रीजन से भी इसको देखने वाले हैं। नेक्स्ट, क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन? और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन ये ऐसी है कि जो डिस्क या स्पाइनल डिस्क, अभी आपको पता है कि वर्टिबल डिस्क और स्पाइनल डिस्क वर्टिबल जॉइंट्स कहाँ पे है, दो जहाँ वर्टिब्रे मिलते हैं या जो वर्टिब्रे दोनों एक साथ आके एक जॉइंट बनाते हैं उसको वर्टिबल जॉइंट कहा जाता है। दो वर्टिब्रे के बीच में जो गद्दी है, जो कार्टिलेज है, उसको स्पाइनल डिस्क कहा जाता है। जब भी उसमें ब्रेकडाउन होना या डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है या उसमें डिजोल्यूशन होना शुरू हो जाता है या उसका नैरोनेस होता है या उसका पानी जो रहता है डिस्क के अंदर, सेल्यूलर फ्लूइड, पानी मीन्स नॉट वाटर बट डिस्क वाटर या वर्टिबल वाटर जो रहता है वो वाटर अगर बाहर निकले तो वो ड्राई होने शुरू हो जाती है और उसका डिजनरेशन फास्ट होने लगता है। तो उसके वजह से आपको वहां पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के आसार या लक्षणें नजर आती है। जैसे ही आपको ये शुरू हो जाता है तो कहीं कहीं पे आपको बोनी स्पर्स उसके ऊपर भी आपको दिखेंगे, आते हुए दिखते हैं और वहां पे थोड़ा सा बोन के अंदर फ्रिक्शन भी होना शुरू हो जाता है और उसके वजह से आपको बोन में स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, आपके रेंजेस में या आपकी जो पहले स्पाइन की जो मोबिलिटी थी उसमें कम आना या ऐसे सिम्टम्स या लक्षण या चिन्ह दिखने शुरू हो जाते हैं। इसमें ये भी हो जाता है कि ये नर्व के ऊपर प्रेशर आने की वजह से जिस मसल को वो सप्लाई करती है और जो पार्ट ऑफ स्पाइन के मसल्स को वो सप्लाई करती है या अपना न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई देती है, वहां पे वीकनेस आना शुरू हो जाता है सॉरी और वीकनेस आना भी शुरू हो जाता है और वहां पे आपको हेवीनेस या नमनेस भी आपके हाथों में या पैरों में शुरू हो जाता है होना। ओके, नेक्स्ट, कॉजेस क्या क्या है? कॉजेस उसमें बहुत सारे हैं। एक तो अगर आपको कोई इंजुरी हुई हो या आपको कुछ ट्रॉमा हुआ हो तो उसके वजह से भी आपको यहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है। कि जैसे बहुत सारे बार आप गड्ढे में गिर गए या स्लिप होके गिर गए या जब स्पीड ब्रेकर होता है उसके ऊपर अगर बाइक आप चला रहे हो एकदम से ये आया, अभी बारिश का मौसम है तो बहुत सारे गड्ढे होते हैं या बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं या पॉट होल्स होते हैं जिसमें आपको आप 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर चलाते हो या बस में होते एकदम से झटका लगता है, उसके उससे भी हो सकता है। आप कोई हेवी वेट चीज उठाते हो, जैसे कि मान लीजिए घर में आपके सिलेंडर होता है वो उठाने जाते हो, तब भी आपको ये तकलीफ हो जाती है। या फिर आप सोफा शिफ्ट कर रहे हो या दूसरा कोई काम कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लेडीज जो होती है वो बैठ के कपड़े धोती है नीचे अपने परिवार के लिए, जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, उनको भी यही तरीके तकलीफ हो सकती है। और बैठे बैठे भी जो लोग एक ही पोस्चर में बैठे बैठे जो काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर वर्क ही नहीं, नीचे बैठ के भी बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं जिनके जिनके काम का ज्यादा तो टाइम या ज्यादा तो हिस्सा एक बैठे बैठे इसमें है और एकदम से उनको उठना पड़ता है या वजन होता है, या कोई ऐसा काम जिसमें आप गर्दन झुका के काम कर रहे हो जैसे कि कंप्यूटर पे टाइप करना या फिर आपके मोबाइल पे भी टाइप करना, इस सारी चीजों में आपको
हर टाइम रिपीटेटिव इंजुरी या रिपीटेटिव स्ट्रेस आके या रिपीटेटिव उसके ऊपर ट्रॉमा होके यहाँ पे आपको आपके बैक में या स्पाइन में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। किसी लोगों को जेनेटिक डिफेक्ट भी होता है जो कार्टिलेज में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि दो बोन का एक साथ जुड़ना या दो डिस्क का एक साथ जुड़ना, ये जेनेटिक डिफेक्ट है जिसको जेनेटिकली जेनेटिक कॉज की वजह से या जेनेटिक कारणों की वजह से होते हैं, जिसमें स्पाइना बाइफिडा वगैरह ऐसे सिचुएशंस रहती है, वो सारे होते हैं, उसके वजह से भी आपको ये तकलीफ दिखते हैं। आफ्टर एज ऑफ 45 मैंने हर बार अपने टॉक में बोला है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होने की आसार बढ़ते हैं या चांसेस बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा तो वुमेन्स को ज्यादा तकलीफ होती है दैन द मेंस, एंड इसके रीजंस भी मैंने लास्ट टाइम बताया थे कि हार्मोनल चेंजेस है, वेट बेरिंग है, प्रेगनेंसी के बाद होने वाले बॉडी में चेंजेस है, फिर उनको वेट बढ़ने की शिकायत हो जाती है, बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है, उनके शरीर से कैल्शियम 35-40 ईयर्स के बाद निकलना शुरू हो जाता है, उसके वजह से उनका स्पाइन कम होता है और रोज का जो काम करना है या रोजमर्रा की उनके जिंदगी में जो उनको काम करना है वो सारे होता ही रहता है और उसके वजह से उनको ये तकलीफ होती रहती है। तो बहुत सारे बार अगर आप देखोगे कि आपको ऐसा दिखेगा कि वीमेन्स ज्यादा तो आपको कंप्लेंट्स करती रहती है कि मुझे स्पाइन या लो बैक पेन या अपर बैक पेन या गर्दन के स्पाइन का पेन शुरू हो गया है, तो वो साइन है अलार्मिंग कि आपको आके आपका चेकअप और आपके डॉक्टर की सलाह लेके सही डायग्नोसिस करके सही ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ओवरवेट और ओबीज एंड सिडेंटरी लाइफस्टाइल जो पीपल होते हैं, जो बैठे हुआ काम करते हैं ज्यादा, तो बैठक वाला जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कुछ होते, और जो पहले से ओबीज है या ओवरवेट है, उनमें ये तकलीफ ज्यादा दिखती जाती है क्योंकि उनके स्पाइन के ऊपर भी इसकी वजह से लोड ज्यादा आता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो लोग फ्रिक्वेंटली एक ही जॉब करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या फिर किसी मशीन के ऊपर उनको रिपीटेटिव एक्टिविटी करना पड़ता है या एक ही एक एक्टिविटी उनको बार बार किसी लोड के साथ करना पड़ते हैं, उनके किसी जॉइंट्स पे या स्पाइन पे ज्यादा तो तकलीफ होने की ज्यादा तो तकलीफ या दबाव आने के चांसेस रहते हैं, उसकी वजह से उनको ये तकलीफ होती है। अगर आप क्रिकेट के बॉलर्स देखोगे तो उनमें ये बार बार बॉलिंग डालने की वजह से होता है। अगर आप हॉकी प्लेयर्स में देखोगे तो जो स्ट्राइकर रहता है उसको बार बार हॉकी से बॉल स्ट्राइक करने की वजह से भी हो सकता है। गोल्फर्स लोगों को होता है क्योंकि उनके स्विंग ज्यादा होते हैं। वैसे ही अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखोगे तो जो लोग वजन उठा के काम करते हैं या जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो अपने सर पे वजन लेके चल रहे हैं, या जो लोगों का फिजिकल फिटनेस कम है लेकिन उनको अपने फिजिकल एक्टिविटी में वजन उठाने की कामें करनी पड़ती है, उन लोगों में ये ज्यादा तो देखा जाता है। सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, अगर हमने देखा तो लास्ट टाइम से हमने 2 लेक्चर्स में देखा है स्टिफनेस एंड पेन। ये तो बहुत कॉमन सिम्टम्स है या साइन है कि हमें आपके इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू होने के अंदाजा आने लगता है, जिसमें नेक है और बैक में आपको पहले ही ज्यादा लगती है, और नी पेन, नी जो घुटना है हमारा, इसमें ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अगर हम देखेंगे सॉरी, अगर हम देखेंगे कि हमें इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम जब काम करते हैं तब सुबह सुबह स्टीफनेस लगता है, और रात को जब आप सोने जाते तब आपको लगता है कि आपकी बैक में पेन हो रहा है या बैक में स्टीफनेस आना शुरू हो गया है। तो आप किसी को बोलते भी हो कि हाँ थोड़ा सा मसाज कर दो या थोड़ा सा यहाँ पे बाम लगा दीजिए या फिर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज करवा दीजिए, स्ट्रेचिंग करवा दीजिए, वो आपके जो सिम्टम्स होते हैं रिलीफ होते हैं। लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के, खास करके स्पाइन के ऑस्टियोआर्थराइटिस के आपकी शुरुआत है और इसको आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये शुरुआत में ही पकड़ा जाए तो इसको लंबे टाइम तक प्रिवेंट किया जा सकता है या दूर रखा जा सकता है। और जिनको ऐसे लगता है कि नहीं मेरे स्पाइन की मोबिलिटी कम गई है, जो आपके रोज के काम है उसमें, या रोज की मोबिलिटी जो है जिसमें आप जो रोज की छोटी मोटी कामों में जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी होती है, अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है, पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है, तो भी एक इसका साइन है या सिम्टम्स है। कैसे हम लोग स्पाइन के ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करते हैं हम डॉक्टर, तो मैंने लास्ट इसमें भी बोला कि डायग्नोसिस क्राइटेरिया, इसको फाइंड आउट करने का क्राइटेरिया एक ही है कि पहले तो आप आपके सिम्टम्स आपके डॉक्टर साहब को बताते हो, इसमें हमें पता चलता है कि हाँ इसके वजह से हो सकता है, अंदाजा आता है थोड़ा। फिर आपका पेन कहाँ पे, दर्द कहाँ हो रहा है, कौन से साइड में हो रहा है, कौन से पार्ट में होता है, वो हमें आप बताते हो।
गर्दन में हो रहा है, मिड बैक में हो रहा है, अपर बैक में हो रहा है या लोअर बैक में हो रहा है, जिसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं, वहां पे जहां जहां आपको होता है वहां पे आप हमको लोकेट करके बता दो, उससे भी हमें अंदाजा आ जाता है। फिर हम हमारी कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं जो हम हमारी टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से भी हमें अंदाजा आता है कि यहाँ पे किस जगह पे प्रॉब्लम है और किसके वजह से ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए हमें एक्सरे की कभी कभी मदद तो लेनी पड़ती है, और उसके डेप्थ में अगर जाना है तो एमआरआई, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट बहुत जरूरत है, कि जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हाँ ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ना कि दूसरा कोई आर्थराइटिस है या ना कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम है। कि जैसे कभी कभी किसी किसी के बैक में दूसरे वजह से ही प्रॉब्लम आता है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, टीबी भी होता है, बोन टीबी जिसको बोलते हैं, वो भी स्पाइन में देखा जाता है, वो भी हिप में देखा जाता है, वो भी नी में देखा जाता है। तो टीबी के लक्षण की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसके वजह से भी हमें ढूंढना पड़ता है कि ये सही में ऑस्टियोआर्थराइटिस है या और कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से हो रहा है। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, स्पॉन्डिलाइसिस के, लिस्थेसिस के है, वो सारे हम ढूंढ के निकालते हैं या उसका डायग्नोसिस हम करते हैं। उसके ऊपर आपको आपके जो ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज है, या फिर जो भी आपको सावधानता बरतनी है, उसके हम लोग आपको प्रिस्क्रिप्शन पे हमारे या ट्रीटमेंट पे हमारे हम आपको उसके सारे उपाय बताते हैं। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हमारे स्पाइन में अगर ये प्रॉब्लम हुआ तो? फर्स्ट, बहुत सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि हमारा फोकस क्या होता है कि हमें पेन कम करना है या जो सिम्टम्स है ना वो कम करने हैं। लेकिन वैसे नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो उनको बोलिए कि मुझे पेन के साथ साथ मेरी जो फंक्शनल एबिलिटी है, जो मैं पहले करता था 5 साल पहले या 3 साल पहले, उसको भी बढ़ाना है। मेरे जो फंक्शनल एबिलिटी और फंक्शन है उसको भी ठीक करवाना है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग पेन हो रहा है इसके पीछे ही लगे रहते हैं, और उनके फंक्शंस और वो जो एबिलिटी है वो वैसे की वैसी धरी रहती है। तो आपको क्या करना है कि आपका फोकस तो पेन पे होना चाहिए, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल या आपका मेन गोल होना चाहिए कि जो आप 3 या 4 साल पहले जो काम करते थे वो काम आप वापस आराम से कर सकते। जैसे कि आप साइकिल चलाते थे तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, या फिर आप आपके पंजे को, अगर आप योगा करते हो तो आपके पंजे को अगर आप टच कर सकते हो तो आपको वो टच करना आना चाहिए, या टो को टच कर सकते हो तो वो करना करते आना चाहिए, या आपका आपका सर घुटने को लगता होता होगा तो वो आपको करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट है कि जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप जो पहले कर रहे थे उसके आसपास आप जाओ, ना कि सिर्फ पेन कम करना है। पेन तो दवाई से भी कम होता है, लेकिन उसको भी आपको फंक्शनल एबिलिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, उसके ऊपर आपका ध्यान भी होना चाहिए। और इससे सिवा आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि सिर्फ फंक्शनल एबिलिटी बढ़े। फंक्शनल एबिलिटी बढ़ने के बाद उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, उसको कवर कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर भी ध्यान है। जैसे आप आपका बैक का पेन चला गया, आपकी फंक्शनल एबिलिटी अच्छी हो गई है, तो आपको ये भी करना चाहिए कि जो आपके गोल्स है वो अचीव करने। जैसे आपको अच्छी तरह दौड़ना आना चाहिए, आपकी मोबिलिटी जो स्पाइन की मोबिलिटी है, नीचे जमीन को टच करना या आपके लेग को ऊपर 90 डिग्री से ज्यादा उठाना, ये सारी जो चीजें हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साइंस है, वो आपको करने के लिए या एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के जो जरूरतमंद बातें हैं वो करने के लिए आपको इजीनेस होना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर आप हेल्दी वेट मैनेजमेंट करते हो, हेल्दी हेल्दी तरीके से अगर आप वेट लूज करते हो, तो अल्टीमेटली आपके स्पाइन पे, आपके घुटने पे, आपके हिप हिप जॉइंट पे, आपके नी जॉइंट पे, आपके एंकल जॉइंट पे ज्यादा दबाव या प्रेशर नहीं आएगा। तो आप अच्छा चल सकते हो, आपका पोस्चर आप सही तरीके से सही सही डायरेक्शन में रख सकते हो, आपके गर्दन स्पाइन का पोस्चर है वो सही रख सकते हो, और उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम हो रही है फ्रिक्शन की या डिजनरेशन सी, उसको कहीं पे ब्रेक आ जाता है, कहीं पे वो रुकना शुरू होता है या कम होना शुरू होता है। तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी लाइफस्टाइल के रोड पे चलना या आप उसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हो। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर जाने के लिए वेट अच्छी तरह से लूज करके आपको सही वेट मैनेज भी करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपकी जो हाइट है, मान लीजिए वो 180 सेंटीमीटर, उसमें से 100 माइनस कीजिए, जो भी बचेगा 80 केजी वो आपका सही वेट है। या उसमें आप 5 कम माइनस रख सकते हो, 85 भी चलेगा और 75 भी चलेगा, लेकिन आप जितना 80 के पास रहोगे वो अच्छा है। 85 है तो आपको कम करना है, 75 है तो आपको वो मेंटेन रखना है, ताकि आपको आगे ज्यादा स्ट्रेस ना आ जाए किसी भी जॉइंट पे या बोन पे। ठीक है।
हमें इसके साथ एक्सरसाइज एंड योगा वही करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइन के हेल्दी मेंटेनेंस के लिए। और ये क्या करते हैं, एक तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, बराबर है, आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, आपके जो शरीर के या स्पाइन के जो मूवमेंट्स होते हैं वो इजी हो जाते हैं, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि हाँ मैं आराम से झुक सकता हूँ, अभी मुझे पेन नहीं है, कुछ नहीं है, और आप एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चालू करते हो। इसलिए आपको एक्सरसाइज और योगा बहुत जरूरी होता है। फिर इसके एक्सरसाइज और योगा की वजह से क्या होता है कि आपको कार्डियो कार्डियो अच्छा होता है, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई, आपकी हार्ट कंडीशन जो होती है उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से बदलाव या फिटनेस नजर आने लगता है। वो आपके हर मसल्स को, नर्व्स को, हर स्ट्रक्चर को वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ना इजी हो जाता है। अगर आपका हार्ट अच्छी तरह से पंप करता है तो इजीली वो अपने हर पार्ट को, हर मसल को अपना ब्लड सप्लाई देगा, और वहां पे वो पार्ट अच्छी तरीके से काम करता है। और ये ओवरऑल हेल्दीनेस की वजह से, ये जो होलिस्टिक अप्रोच है हेल्दीनेस का, अगर आप उसको फॉलो करते तो उसके वजह से आपको आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो टास्क है, जो हमारे सामान्य जिंदगी में जो टास्क होते हैं, वो इजी से इजी या सरल होने लगते हैं। बहुत सरल से हम सरलता के साथ उसका हम काम कर सकते हैं, वो एक्टिविटी हम कंप्लीट कर सकते हैं बिना थके हुए और बिना कोई टायर्डनेस या फटीग, जो हम थकवा बोलते हैं, वो थकान के सिवा हम लोग वो काम जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जिस तरीके से आपकी ट्रीटमेंट हो रही है, वो सारी ट्रीटमेंट आपको इसमें करने में आपको, आपका जो फोकस होता है वो ज्यादा तो पेन कमी करने में नहीं, ताकि आपकी पर्सनल एबिलिटी एंड फंक्शंस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ाने के रोड पे या रास्ते पे होना चाहिए। एक्सरसाइज में हमें और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो हमें करना चाहिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ताकत वाली एक्सरसाइजेस, जो हमारे मसल्स को सपोर्ट भी करे और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करे। जिसकी वजह से अगर मसल स्ट्रॉन्ग है और मसल्स आपके ज्यादा ताकत वाले हैं, स्टेबिलिटी के हिसाब से अच्छे हैं, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा कि आपके जो दोनों जॉइंट्स है या कोई भी जॉइंट्स है स्पाइन वगैरह वाला, उनको सपोर्ट अच्छे देंगे, उनका स्लिंग जो रहता है उसको, जो अगर कोई स्ट्रक्चर है जो किसी रोप पे खड़ा हुआ है, अगर उसके रोप को अगर इम्बैलेंस होने लगा या रोप की ताकत कम होने लगी, तो वो गिर सकता है, या फिर वो एक तरफ झुक सकता है। तो वो झुकाव एक तरफ ना जाने के लिए हर मसल का और उसके जो मसल पार्ट है, वो लिगामेंट है और अदर स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट टिश्यू, उनकी ताकत और उनका सपोर्ट और उनकी स्टेबिलिटी अगर बैलेंस में रहेगी, तो आपको अच्छी तरीके से जॉइंट स्ट्रांग और सपोर्टिव मिलेगा, उसके वजह से आपका इम्बैलेंस नहीं होगा कहीं पे भी। इसलिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की बहुत सारी जरूरी है। एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, जो मैंने बोला कि एरोबिक एक्सरसाइजेस ऐसे होते हैं जो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। आपका कार्डियो एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है, इसके वजह से आपका हार्ट का पंपिंग होता अच्छा होता है, उसकी वजह से जो आपको ब्लड सप्लाई हर बॉडी पार्ट को मिल रहा है वो सही तरीके से मिलता है। अल्टीमेटली उसको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन अच्छा मिले, तो कोई भी चीज अपनी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने में इजीनेस रखता है, और उस एफिशिएंसी बढ़ती है, इसलिए आपके और हेल्दी जो है लाइफ स्टाइल, उसमें आपको इंप्रूवमेंट लगती है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज जो मैंने अभी स्पाइन और एक्सरसाइज और योगा में आपको बताया कि वो करना जरूरी है, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ी रहे, अच्छी तरीके से बढ़ी रहे। इसके लिए हाँ, आपको जरूर है कि आपको आपके रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े से रेस्ट पीरियड्स भी लेने जरूरी है। जैसे कि अगर आप बैठे हुए काम करते हो, डेस्क काम है आपका, कंप्यूटर वर्कर हो या आप स्कूल टीचर वगैरह हो, तो इसमें अगर आप खड़े रहे हो तो आपको थोड़ी टाइम बैठना है चेयर पे या इस पे, और अगर आप बैठे बैठे हो तो आपको हर घंटे के बाद में या एटलीस्ट 2 घंटे के बाद आपके चेयर से उठ के, आपके चेयर के यहाँ पे थोड़ा सा घूम के, या एक राउंड सिर्फ चेयर को ही मार के, या थोड़ा सा खड़ा रह के आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपके नेक के लिए, स्पाइन के लिए, और थोड़ा सा आपके नी के लिए और हिप के लिए अगर आप करते हो, तो आपका जो थकान है या आपका जो उसके ऊपर आने वाला स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। वो इसीलिए कम हो जाता है कि हमें थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पता है कि जिसमें एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। वो इसलिए होता है ताकि ग्रेविटी भी हमें फोर्स देती है और हम भी बैठे तो उस सरफेस से भी हमें फोर्स निकलता है, तो वो सारा हमारे बॉडी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर
बड़ा रहता है, और अगर ये स्ट्रेस लोड में कंट्रोल कन्वर्ट हो गया तो हमें भी वो लोड हमारे बॉडी पे या हमारे स्पाइन पे ज्यादा लगने लगता है। इसीलिए मेरा आपसे सबसे कहना है या ये कि अगर जब भी आप काम कर रहे हो कोई भी जो 4 घंटे या 5 घंटे वाला है, तो इसमें आप हर 2 घंटे के बाद या फिर हर एक एक घंटे के बाद आप उठ के यहाँ पे वहीं पे एक सर्कुलर राउंड मारिए या थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी की मूवमेंट्स कीजिए, तो ये स्ट्रेच चला जाएगा और आप अच्छे एफिशिएंसी से, बढ़िया एफिशिएंसी से आपका काम अच्छा कॉन्सेंट्रेट करके कर सकते हो। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता, एक 30 सेकंड का ब्रेक या 1 मिनट का ब्रेक भी बहुत हो गया ये एक्सरसाइज या ये ड्रिल करने के लिए, कि जिसमें आपको बॉडी वर्टिकल बॉडी स्ट्रेच किया तो भी चलेगा आपको, जो हम इसमें ताड़ासन बोलते हैं, वो ताड़ासन किया तो भी आपको बहुत है, जिसमें होल बॉडी स्ट्रेच होता है। उसकी वजह से बॉडी का जो स्ट्रेचिंग लेवल होता है उसकी वजह से स्ट्रेस और लोड कम हो जाता है, और आपको अच्छा स्ट्रेचिंग मसल को मिलने की वजह से वहां पे आपको रिटर्न रिकॉइल ऑफ मसल अच्छी होती है, पूरा स्ट्रेस निकल जाता है और आपको आपके काम में या इसमें अच्छा लग के आप फीलिंग अच्छी आती है, यूफोरिया टाइप फीलिंग आती है, उस फीलिंग के साथ आप अच्छा काम कर सकते हो। इसलिए मेरा कहना है आपको कि आप प्लीज ये आपके डेली रूटीन में शामिल कर दीजिए। इसके बाद मसाज, हाँ अगर आप बहुत थके हो तो आपको मंथली एक मसाज लेने का एडवाइस मैं कर सकता हूँ, या थेरेप्यूटिक मसाज बोलते हैं, जो हम आपको अगर घर पे करवाना है तो आप घर पे भी, या नेचुरोथेरेपी सेंटर में या स्पा सेंटर में, या फिर किसी स्किलफुल पर्सन के साथ भी आप सॉफ्ट टिश्यू मसाज ले सकते हो, डीप टिश्यू नहीं, सॉफ्ट टिश्यू मसाज लेना आपको बहुत अच्छा है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, थेरेप्यूटिक सॉफ्ट टिश्यू मसाज आपको स्पाइन के प्रॉब्लम में लेने की वजह से आपको थोड़ी सी इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ रिलीफ है, या इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत सारी मुझे जो पेन हो रही थी उसमें अभी कमी महसूस हो रही है। एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग इज अगेन अ न्यू एडवांस टेक्निक। जिस किसी को ये प्रॉब्लम्स होती है उसमें जो स्टिफनेस और ये जो एक्टिविटी लेवल कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी लेवल कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए, वहां का पेन कम करने के लिए आप एक्यूपंक्चर थेरेपी या ड्राई नीडलिंग थेरेपी करवा सकते हो। लेकिन ये भी आप किसी प्रोफेशनल और स्किलफुल पर्सन से ही करवाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खतरा होता है कि अगर वो सही पे अगर निडल लगे तो उसका फायदा होता है, अगर सही पे नहीं निडल लगे तो उसकी तकलीफ भी आप ही को होगी। इसीलिए आप जब भी करवाएंगे तब अच्छे पर्सन से ही करवाइए। यहाँ पे लिखा है मैंने कि ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस बोलते हैं, एक छोटा पॉकेट मशीन होता है जो हमें मसल रिलीव करने के लिए एक वाइब्रेशन फोर्स की तरह से एक्टिव होता है। इससे ना ही कोई करंट लगता है, ना ही कोई आपको तकलीफ होने के चांसेस है। बहुत छोटा करंट होता है जो मसल को एक्टिवेट करके उसका जो वहाँ का पेन है वो रिलीव करने में, या फिर उसके वहाँ की जो तकलीफ है जो जिसकी वजह से वो स्टीफनेस या वो ज्यादा तो थक गया है, या वहाँ पे जो एक एक इस पोजीशन में अटका हुआ है, वो रिलीव होने के लिए आपको मदद करता है। स्पाजम, मसल स्पाजम में या लंबैगो की जो कंडीशन होती है, जो लंबर स्पाइन में ज्यादा तो देखी जाती है, उस कंडीशन में आपको इसमें फायदा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस स्पाइन ट्रीटमेंट में, जिसमें हमें क्या सही खाना है और उसके साथ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या लेनी है। न्यूट्रिशन अलग है और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अलग है। न्यूट्रिशन ये होता है जो आप आपके डाइट से ले रहे हो, और आपके डाइट में जो रोज आपके खाने में जो अलग अलग पदार्थ है या जो अलग अलग चीजें है उनसे जो मिल रहा है वो न्यूट्रिशन होता है आपका। जैसे प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, वाइटामिन है, ये सारे न्यूट्रिएंट है आपके बॉडी के। लेकिन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं जहां जहां आपकी कमी होती है वहां पे आपको एक्सटर्नल थोड़ी दवाई के रूप में जो एडिशनल चीजें लेनी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आपके बचपन में भी फिश ऑयल, कॉड लिवर फिश ऑयल लिया होगा, या फिर विटामिन की टैबलेट्स ली होगी जैसे कि विटामिन सी है, या फिर आप नींबू पानी पीते हो, उसमें से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने कैल्शियम की टैबलेट ली होंगी, एक्स्ट्रा कैल्शियम बॉडी के लिए। तो ये सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में आता है। इसमें प्रोटीन भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में आता है। उसके भी बहुत अलग अलग पार्ट है कि उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का भाग होता है। लेकिन
मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि वो सप्लीमेंट से जो दवाई के इसमें या टैबलेट के इसमें फॉर्म में आपको अलग से आपके खाने के सिवा लेने पड़ते हैं, जिसके वजह से आपके स्पाइन को या आपके बॉडी को जो डेफिशिएंसीज है, जहां जहां आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, वो कम करने में या उसको बैलेंस रखने के लिए आपको इजी हो जाता है, या आपको आपको सिंपलीफाई हो जाता है। उसके लिए आप लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हैं। इसमें एक कॉन्ड्रेंटिन करके और ग्लूकोजामाइन करके बहुत सारा सप्लीमेंट्स आता है, मार्केट में भी मिलता है और कुछ कंपनी भी उसको मार्केट करती है। वो इसलिए होता है कि आपके बॉडी को या आपके जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए, उसके अंदर के जो कार्टिलेज है उनको अच्छा रखने के लिए ये दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो कॉन्ड्रेंटिन और दूसरा जो होता है वो ग्लूकोजामाइन। उसके ग्लूकोजामाइन के वजह से आपके घुटनों के बीच में का लचीलापन, आपके स्पाइन में का जो डिस्क है उसका लचीलापन, वो बरकरार रहने में आपको मदद होती है। इसलिए इस तरीके से सप्लीमेंट्स आप, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो ही आप लीजिए, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है तो आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट पार्ट थोड़ा सा, जिसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स करके आपको बताया है। इसके सिवा अगर आपको और कुछ ट्रीटमेंट चाहिए आपके कंडीशन की वजह से, तो आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जरूर पूछ सकते हो। सो अगेन लास्ट बट not least, thank you for your patience listening, and I am open for your interactive question. Be aware and be always safe. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sandeep ji, for this wonderful session, very informative session. I must say, Thank you. काफी काफी डिटेल में हमें समझ में आया कि स्पाइन में कितने डिटेल पार्ट्स होते हैं, तो किस तरीके से हमें केयर करनी चाहिए, क्या क्या इश्यू आ सकता है। तो Yes, आई एम ma'am. श्योर सबके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे। एनीबडी हु हैज क्वेश्चन कैन पोस्ट इट ऑन द चैट बॉक्स, एंड हम लेंगे चैट बॉक्स में। प्लीज आपके क्वेश्चन डाल दीजिए। संदीप जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम। जो हमारे पाँव में क्रैम्प्स आते हैं, हाँ हाँ, क्रैम्प्स आते हैं, उसके लिए व्हाट वी डू समटाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग द व्हाइल वी आर स्लीपिंग, वो टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है नेहा मैम। इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ रहती है कि रात में क्रैम्प आना, लेकिन ये थोड़े जो क्रैम्प्स होते हैं वो डिपेंड है एनवायरमेंटल जो सीजन होता है उसके ऊपर में। ठंडा और बारिश के सीजन और गर्मी के सीजन में जब आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, बारिश के सीजन में और ठंडे में इसलिए होता है क्योंकि आप पानी ही कम पीते हो, और गर्मी में आप पानी ज्यादा पीते हो लेकिन आपका स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन ज्यादा होता रहता है। तो वो पानी की मात्रा फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी होनी चाहिए, जो आपको बॉडी को जरूरत है। 3.5 से लेके 5 लीटर तक पानी पीना हम एडवाइस करते हैं। जिनमें किसी में थोड़े किडनी के प्रॉब्लम्स है, या किसी में वाटर फिल्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स है, या वाटर रिटेंशन के प्रॉब्लम्स है, उन्होंने 2.5 से लेके 3 लीटर तक पानी रोज पीना ही चाहिए। ये ज्यादा तो सीनियर सिटीजन में होता है, उन्होंने ये करना चाहिए। लेकिन जिनके इसमें नॉर्मल है, उनको मैं सजेशन करूंगा कि 3 से लेके 5 लीटर के दरम्यान, अगर आप एथलीट हो तो 5 लीटर आपको कंपलसरी है, और अगर आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल में हो तो 3 से 3.5 लीटर तक का पानी आपको पीना चाहिए। इसके साथ आपके बॉडी के सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं या मिनरल्स बोलते हैं, उनकी लेवल अच्छी होनी चाहिए। जब आपके बॉडी से ये सॉल्ट, नमक निकलता है, बहुत सारे बोलते हैं नमक की कमी हो गई उसकी वजह से आपको क्रैम्प आ रहे हैं, तो वो जो नमक निकलता है वो नॉट बट इट्स सॉल्ट, और जो ये क्षार रहते हैं वो कम होती है। इनकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इनका जो क्लोराइड्स लेवल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो लेवल्स कम हो जाती है। उसकी वजह से मसल में आपके माल फंक्शनिंग होना जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करें, तो प्रोटेक्शन के फेज में जाने के लिए वो अलग अलग इसमें कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं, और उनको समझ में वो कोऑर्डिनेशन जो है ब्रेक होता है, और उससे की वजह से आपको क्रैम्प आना शुरू हो जाता है। और ये क्रैम्प इसी के वजह से आते हैं कि इसमें आपको कैल्शियम की भी कमी होती रहती है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे घटक है उस वजह से आपको होते हैं। उसके सिवाय लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, उनको वो इसमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ा या उस एक्टिविटी में जाना पड़ा तो आपको तकलीफ होती है, और उसके वजह से आपको क्रैम्प आते हैं। थर्ड है, आप वो लेवल की एक्टिविटी और एक्सरसाइज, सडनली आपको किसी बात के लिए स्ट्रेच करना पड़ा या पैर को स्ट्रेच करना पड़ा नींद में भी, तो वो कंट्रोल करने के लिए मसल्स में ताकत नहीं होती है, और उसके वजह से
उनका इंटरप्शन होता है, एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, प्रोटेक्शन वाले भी सिग्नल्स आते हैं ब्रेन और स्पाइन की वजह से, जो पैर की नसें है। और ज्यादा तो हमारी नसें कहाँ पे, हाथ में है या पैर में। हाथ कंपैरेटिव पैर, काफ और थाई के इसमें कम है सेंसेशन, तो वो पहले वहां पे अटैक करता है, उसकी वजह से वहां पे क्रैम्पिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाता है। ये ज्यादा तो काफ में या आपके थाई में आता है, कभी कभी आपके बैक में भी क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो ये सारा एक मिसमैच होता है बॉडी में। अगर अगर ये मिसमैच को हम कंट्रोल में या सही लेवल में या बैलेंस में रखें तो ये ऐसे क्रैम्प नहीं आ सकते। किसी किसी की, मैंने जो बोला है कि वात की प्रकृति ज्यादा होती है, जो आयुर्वेद में बोला जाता है, वो भी ज्यादा हो गया, मीन्स गैसेस स्टेसिस भी ज्यादा हो गए, तो मसल और बाकी इसके ऊपर कंप्रेशन आना शुरू होता है। तो कभी कभी आपको पेट में क्रैम्प आना या जहाँ पे बैक में क्रैम्प आना, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए नेहा जी, आपको आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक छोटी टेस्ट होती है जो ब्लड टेस्ट में किया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसकी लेवल कम से कम, इसकी लेवल तो अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम और ये छोटे एलिमेंट्स है जो हमारे खाने में से हमें मिलते रहते हैं, लेकिन मुंबई के एनवायरनमेंट में या राजस्थान के एनवायरनमेंट में जो गर्मी पड़ती है उसकी वजह से सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम की लेवल नीचे जाती है। उसकी वजह से आपको ये पानी की मात्रा और शार्क जो सॉल्ट रहती है उसकी मात्रा बैलेंस में रखनी चाहिए, तो आपको क्रैम्प नहीं आएंगे। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप सेटिस्फाइड रहेंगे इस आंसर से। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप थोड़े टेस्ट करके हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम हमारे ओपिनियन में आपको बताएंगे क्या करना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये भी हर इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि इसकी कितनी मात्रा से दवाइयाँ या किस हिस्से करे जाए। हाँ, आपको क्रैम्प आती है तो आप जिस डायरेक्शन में क्रैम्प आ रहा है, जिस डायरेक्शन में क्रैम्प, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। तो जब भी आपको कभी नींद में वगैरह क्रैम्प आता है तो थोड़ा रुकिए, क्रैम्प को सेटल होने दीजिए, थोड़ा सा उसका जो हाई पोटेंशियल से स्पाइक आया क्रैम्प का उसको कम होने दीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे करके ना थोड़ा उसको स्ट्रेचिंग उसके अपोजिट, मान लीजिए आपको ये डायरेक्शन में क्रैम्प आ रहे हैं तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसको स्ट्रेच करना है। जैसे आप स्ट्रेच करेंगे आपको थोड़ा पेन होगा या तकलीफ होगी, लेकिन वो स्ट्रेच पेन की वजह से वो जो रिफ्लेक्स होता है वो ब्रेक होने लगता है या वो रिफ्लेक्स कहीं पे इंटरप्ट होने लगता है, और उसके बाद आपको नॉर्मल रिफ्लेक्स से, जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटी से जो सिग्नल्स आते हैं उसकी वजह से आपके क्रैम्प्स और कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ मसल से कॉन्ट्रैक्शन जो आते हैं उसकी वजह से आपको रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव और इन चीजों का ध्यान रखूंगी, स्पेशली फैमिली में भी आ सकती है। यस यस यस। प्रसाद सेठे हैज अ क्वेश्चन। प्रसाद, इफ यू कैन डायरेक्टली आस्क बिकॉज़ काफी डिटेल्ड क्वेश्चन। यस, हाय प्रसाद, हाय प्रसाद। Hello, doctors. Hello, hello. Thank you again for the session today. Yeah, I was welcome. like eagerly waiting ये बैक पेन के लिए जो था। तो डॉक्टर, मेरा जो क्वेश्चन है कि मुझे कभी कभी लोअर बैक में पेन होता है, कभी कभी मतलब इट्स लाइक काफी सालों से थोड़ा सा पेन होता है, और कभी कभी वो पेन है ना राइट डाउन द लेग जाता है, लेफ्ट या राइट लेग। बराबर, हाँ। और अभी आजकल तो लास्ट 7-8 मंथ्स ना इतना बढ़ गया कि मैं जब क्रिकेट खेलता हूँ, भागना भी होता है ना, तो बैक में पेन ऐसे मारता रहता है। अगर मैं लोअर बैक को टेंशन भी थोड़ा सा टेंस करता हूँ तो पेन अभी समझने लगता है। तो जैसे मैंने बोला लाइक थोड़ा योगा और सूर्य नमस्कार चल रहा है, थोड़ा कम हुआ है, बट आई एम वरीड अबाउट बैक स्ट्रेंथनिंग। यस यस यस। ओके भी हो जाए तो मुझे ऐसे, और थोड़ा शोल्डर प्लेट्स, तो ऐसे लगता है शोल्डर प्लेट्स को भी असर करता है अगर स्पाइन प्रॉब्लम हो। हाँ, शोल्डर प्लेट्स को भी असर करता है। मैंने जैसे बोला सर्वाइकल, जैसे आपने मुझे एक हिस्ट्री भी दी थी, आपको शोल्डर में भी डिसलोकेशन वगैरह होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका पोस्चर थोड़ा सा ना ऐसा हुआ होगा, थोड़ा नेक फॉरवर्ड करके थोड़ा आगे बढ़ा होगा, तो उसकी वजह से आपके जो शोल्डर ब्लेड्स भी है ना, जो शोल्डर ब्लेड्स ऐसे रहने चाहिए सेम लेवल पे, वो थोड़े अंदर के तरफ आए। तो अगर आपको इसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और स्टेबिलिटी एक्सरसाइज इसको नॉर्मल जितना हो सके उतना नॉर्मल करेंगे तो आपको शोल्डर ब्लेड की तरफ जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं आएगा। दूसरी बात, आपके स्पाइन का शेप देखिए, अगर मैंने जो डायग्राम में आपको शेप दिखाया था उस डायग्राम के हिसाब से है तो आपका स्पाइन नॉर्मल है, लेकिन अगर वो जो मैंने डायग्राम दिखाया था या पिक्चर दिखाए थे आपको जो नॉर्मल ह्यूमन स्पाइन है उससे अगर अलग है थोड़ा सा, खास करके बैक में वो थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा कर्व होता है ऐसे, अगर ये कर्व है तो ये नसें भी ऐसे ही स्ट्रेच होके जाती है जो एक्स्ट्रा कर्व में स्ट्रेच होती है। तो ये बहुत सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं या खेलते हैं, बॉलिंग डालने की वजह से या उनके पोस्चर की वजह से ये बढ़ता है। तो अगर ये तकलीफ हो रही है आपको तो आपको लेग में भी जा रहे तब ये डबल स्ट्रेच होके जा रही है, और जैसे आप एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रेच करते हो या थोड़ा ज्यादा
आप जब स्ट्रेच करते हो आपके लेग को फ्रंट और बैक के तरफ बैकवर्ड, जैसे हाँ। ये बैटिंग वगैरह में आप ऐसे स्ट्रेच करते हैं राइट। या बॉलिंग में आप ऐसे स्ट्रेच करते हो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा के, तब आपके बैक के जो लंबर स्पाइन है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स आता है, वो लिगामेंट और वो मसल्स भी स्टिफ होंगे आपके, इसके वजह से आपको अभी बैक वगैरह इसमें आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्सरे करवा लीजिए एक बैक का, उसके हिसाब से हमें आपकी स्ट्रक्चर पता चलेगा कैसे है, और उसके ऊपर हम लोग आपको रेमेडी बता सकते हैं। इसमें थोड़ा आप फोम रोलिंग, थोड़ा योगा, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा कार्डियक एक्सरसाइजेस वगैरह मिक्स कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके जो और थोड़ा कोर स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेट की स्टेबिलिटी एंड आपकी बैक की स्टेबिलिटी जो ऑलरेडी आप कर रहे हो सूर्य नमस्कार और योगा से, तो वो अगर अच्छी हो जाती है तो आप ये प्रॉब्लम से आराम से निकल सकते हो और आराम से आप इसको लंबा कर दे सकते हो। और जैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी तो काफी अच्छी है, मतलब आई कैन टच द ग्राउंड विदाउट बेंडिंग द नीज। यस यस यस, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है लेकिन स्ट्रेंथ कम है, दो अलग अलग हिस्से हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी अलग चीज, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो मोबिलिटी भी अच्छी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ अगर उसमें ताकत रहेगी तो ही होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम को। तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप 2-3 ओवर खेल सकते हो या 1 घंटे का काम कर सकते हो, लेकिन ताकत आ जाएगी तो वही चीज आप 1.5 घंटा 2 घंटे कर सकते हो। इसलिए आपको 2-3 और जो बोला, 2-3 और जो हाँ आपने बोला वही वो प्रैक्टिकल हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलता बहुत सारे क्रिकेटर्स को ये प्रॉब्लम होती है, इसी के लिए आप भी उसी कॉमन प्रॉब्लम से जा रहे हो। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेंथ करोगे तो आप आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, आपको ड्यूरेशन भी अच्छे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खेल सकते हैं, कोई भी काम आप लंबे समय तक कर पाओगे। ओके प्रसाद सर, जी, तो जो एक्सरे आपने बोला तो उसको क्या बोलते थे, क्या बोलने वो एक्सरे? लंबर स्पाइन एपीलैटरल व्यू, लंबर स्पाइन एपीलैटरल व्यू आप कर सकते हो। वो अगर आप हमें व्हाट्सएप पे डॉक्टर सुवेश शर्मा को बता के अगर आप भेज देंगे तो फिर मैं उसके ऊपर ओपिनियन दे पाऊंगा। ठीक है, मैं करूंगा। या श्योर, थैंक यू वेरी मच। यस, एंड जैसे संदीप जी ने भी बताया, इवन फॉर प्रसाद सेठे, if anybody of you all wants to do a consulting also with Dr. Sandeep ji, let us know. We are doing online consulting also now. तो किसी को कोई इशू है, बैक का इशू है, लंबर, अपर लिम्स, लोअर लिम्स का इशू है, एनी काइंड ऑफ दोज इशू, we have started taking online consulting also. So we can do that way also, one-to-one discussion. Yes. Roshni Mishra has one question. Roshni ji, if you can unmute yourself and ask, that would be great. Roshni ji, if you can unmute yourself and ask. Am I audible now? Yes ma'am. Yes ma'am. Yeah, good evening sir. Actually मुझे ये पूछना था कि मुझे ना ऑलरेडी तब है कुछ लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस करके, तो मैंने मुझे सर लोअर बैक में ना, मतलब जब जहाँ पे रीढ़ होती है तो कैसे हमारा थोड़ा अंदर के साइड होता है ना बीच में, हाँ बराबर, हाँ बोलिए आप। मुझे सूजन है, मुझे वहाँ पे स्वेलिंग है। अच्छा हाँ, बहुत पेन करता है, तो आई रियली वांट टू नो कि वो एग्जैक्टली क्यों स्वेलिंग है, मतलब I'll explain her case, sir. I have seen her case. She has a lower back bulge. L5 और S1 के बीच में she is having a bulge, and L4 और L5 के बीच में also she is having a bulge. Okay. तो उसके वजह से she is suffering. She is going through pain. Okay. रोशनी जी, आपका सवाल मुझे समझ में आया है। रीढ़ की हड्डी में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस का ही एक टाइप है, जिसके बीच में जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था स्क्रीन के ऊपर, जब दो वर्टिब्रे के बीच में जो गद्दी होती है या कार्टिलेज होता है उसके ऊपर जब प्रेशर आता है तो बाहर की तरफ वो सेल्यूलर वाटर या बाहर की तरफ उसको धक्का देता है, तो उसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। वो स्वेलिंग के वजह से आपके जो नर्व्स होती है ना, वहां पे टचिंग होना शुरू होता है। तो वो टच होना आपको शुरू हुआ है, उसके वजह से आपके बैक में स्टिफनेस रहता है और वो स्टिफनेस की वजह से आपको तकलीफ होगी। जब आप सोते हो, जब आप आपके पीठ के बल पे सोते हो तो आप देखना आपके स्पाइन के इसमें आपको गैप लगता है, जब आप सोते हो तो टच नहीं होता है। तो वो उसी का कारण है कि उसमें जो मसल्स है वो स्टिफ हो गए हैं, या जैसे मेरा अभी आप हाथ देख रहे होंगे तो हाथ की तरफ देखेंगे तो इसी पोजीशन में रहते हैं, तो इसको पास आना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस और आपको बॉडी उसके लिए थोड़े बॉडी के लिए फोम रोलिंग के एक्सरसाइजेस, योगा, जो स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेस योगा खास करके, वो योगा आपको कुछ दिन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका प्रॉब्लम कम आएगा और जो स्वेलिंग है वो भी धीरे धीरे कम होती है। अगर आपका सिटिंग जॉब है, आपका ज्यादा सिटिंग जॉब है क्या मैम? हाँ, पर मैं अभी मैंने छोड़ा क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा था इसलिए। अच्छा, अगर आपका सीटिंग जॉब है, अगर आप घर पे भी काम कर रहे हो चेयर में वगैरह, तो आपको
लंबर कुशन आता है, जो आपके हाँ लंबर, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहां पे जो गैप है, जो स्टिफ हुआ है, हाँ ऐसा हाँ गैप है आपका, हाँ हाँ उसके गैप के यहाँ पे सपोर्ट आता है, जो मार्केट okay, में या आपको मेडिकल स्टोर में हाँ मिलता हाँ है। हाँ वो आपको बैक में, आपके जो चेयर का बैक रहेगा, वहां पे लगाना है या बांधना है, उसको लंबर सपोर्ट बोलते हैं। ओके दूसरी चीज, जब आप सो रहे हैं तब आपको हमेशा दोनों पैर आपके पास में घुटने में मोड़ के सोना है, जैसे छोटा बच्चा सोता है, हाँ एक एक करवट पे, वैसे सोएंगे ओके तो आपकी तकलीफ कम रहेगी, आपको नींद भी अच्छी तरीके से आ सके। लेकिन आप पेट के ऊपर सोना या फिर पीठ के ऊपर सोना कम रखिए, ज्यादा मत रखिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम और बढ़ेगा, वो स्टिफनेस आपको और बढ़ेगा। हाँ इसके हाँ लिए जो मैंने अभी आपको जो नुस्खे बताए हैं, वो हाँ आप ध्यान में रखिए, और कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग के, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कीजिए। उससे आप अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो रही है। और हर 1 घंटे के बाद जब भी आप बैठ रहे हो तब आपको कंपलसरी उठना है। श्योर जैसे श्योर आप अलार्म लगा दीजिए आप, या जैसे 12 से 1 होता है, तो 1 में जब टंग टंग ऐसा आ जाता है, तब आपको हाँ उठना हाँ ही है, ताकि आपको जो स्वेलिंग आ रही है वो पास ऑन हो जाए, और धीरे धीरे जो स्ट्रेस आ रहा है वो कम हो जाए। आपको श्योर ये प्रॉब्लम कम होने के लिए 6 महीने कम से कम लगेंगे, जिसमें ये स्ट्रेस वगैरह चला जाएगा। हाँ हाँ ओके सर ओके, ओके तो थैंक ये यू थोड़ी है। और आप बर्फ से हमेशा, हेलो, अभी थोड़ा बर्फ ठंडा से है, हाँ अभी आप ठंडा है ना, ठंडा हम्म है तो आप थोड़ा सा बर्फ से नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जैसे ही जैसे आप गर्मी में चले जाओगे, गर्मी के हाँ सीजन में, हाँ तब आप हमेशा बर्फ लगाया करो, ताकि वो स्वेलिंग कम हो जाए। अभी भी ओके लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये सर्दी खांसी का मौसम है, इसलिए मैं आपको हम्म नहीं बोल रहा हूँ। तो हम्म थोड़ा गुनगुना पानी से आप सेक कर सकते हो, गुनगुना, ज्यादा नहीं, गुनगुना पानी से, लेकिन आपको ज्यादा तो बर्फ से फायदा होगा। ओके ओके सर ओके, आप एक बैग में या थैली में या आइस पैक लेके उसको कर सकते हो, कोल्ड कंप्रेशन से, 10 ओके से 20 मिनट्स के लिए, नॉट मोर देन दैट, ओके सर एज पर योर कंफर्टेबल लेवल। ओके, ओके थैंक यू। थैंक यू चेयरमैन सर, उत्तम जी संदीप जी, also जी हाँ जी जी सर। संदीप जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी वेरी नाइस सेशन। अभी जस्ट आप इन मैडम को बता रहे थे कि ये अपना बर्फ का और गर्म पानी का सेक करना, हाँ जी सर। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई बोलता है गर्म पानी का सेक करो, कोई बोलता है ठंडे पानी का सेक करो, राइट। हाँ 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 और कई लोगों को इससे ये डर लगता है कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये हो जाए। तो रियली किस सिचुएशन में गर्म पानी का करना चाहिए और किस चीज में ठंडे पानी का करना चाहिए, मतलब एक अच्छा, ऐसा नॉर्मल थोड़ा माइंडसेट हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को समझ में आ जाए हाँ जी सर, हाँ कि क्या श्योर, मैं इफेक्ट आप, थोड़ा बहुत। हाँ मैं बोलता हूँ सर। पहले तो ये एक मिथ है कि बर्फ लगाने की वजह से हमें सर्दी खांसी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मिथ है। अगर आप शरीर के उस पार्ट पे, मीन जैसे हमारा फेस है, यहाँ पे अगर आप कहीं पे बर्फ लगा रहे हो, तो आपको सर्दी खांसी होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साइनसेस रहते हैं, मीन्स यहाँ के अंदर एयर साइनसेस या कैविटीज रहते हैं, जिसके अगर अगर ठंडे पानी की वजह से जो अंदर का फ्लूइड है जो हमारे नोज के आसपास है, जो हवा फिल्टर करके अंदर जाता है, उसका अगर कंप्रेशन हुआ, या उसका अंदर के यहाँ पे ऐसा, जैसे बर्फ के पानी की वजह ठंडे में से वो अंदर जम जाता है, अगर ऐसा हुआ तो ही आपको सर्दी हो सकती है या खांसी हो सकती है। और अगर आप चेस्ट के ऊपर डायरेक्टली बर्फ लगाते हो, चेस्ट के ऊपर अगर आप कोल्ड कंप्रेशन करते हो, तो ही आपको सर्दी खांसी होने के चांसेस रहती है। 90% लोगों को ये नहीं होता है, 10% ऐसे लोग हैं कि जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कोल्ड के लिए, तो उनको ये तकलीफ होती है। जैसे बहुत सारे लोग जब लेह लद्दाख जाते हैं या थोड़े ठंडे की तरफ जाते हैं, राजस्थान के ऊपर वगैरह ठंडे की तरफ जाते हैं, तो उनको ठंडे हवा की वजह से भी तकलीफ होती है सर्दी खांसी की। इवन जो मुंबई में वगैरह रह रहे, इस तरह पूना में रह रहे, इनको भी जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस है, जैसे कि डस्ट वगैरह, उसके वजह से भी ठंडा पना बढ़ गया, तो उसके वजह से भी डस्ट एलर्जी वगैरह के सर्दी खांसी होती है। तो ये रहा कोल्ड के वजह से होने वाले फैक्ट। कोल्ड कब लगाना चाहिए? जब आपको कोई रिसेंट इंजुरी है, या रिसेंट लगा हुआ है, या रिसेंट आपको कैच आया हुआ है, पुल आया हुआ है, स्ट्रेन आया हुआ है, या रिसेंट आपको स्टिफनेस बैक में लग रही है, उस टाइम पे आप कोल्ड लगा सकते हो, ठंडा लगा सकते हो। बैक में लगाने की वजह से, क्योंकि वहां पे लंग्स नहीं है, पैर में लगाने की वजह से, एंकल में, फुट में लगाने की वजह से, शोल्डर में लगाने, एल्बो में, यहाँ पे कोई भी लंग्स के टिश्यूज नहीं है, तो आपको यहाँ पे सर्दी खांसी होना बहुत रेयर होता है। यहाँ इसकी वजह से आपको सर्दी खांसी नहीं होगा, क्योंकि बर्फ का भी एक टेम्परेचर 4, और बर्फ पिघलता है तब टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको सर्दी या खांसी मीन्स, वो पिघलता है तब वो फ्रोज नहीं करेगा अंदर वाले स्ट्रक्चर को, वो अपनी हीट देके, बॉडी हीट जनरेट करके, उसकी वजह से वहां पे
तो रिएक्शंस हमें देखने पड़ते हैं। लेकिन जब हम बर्फ या ठंडा लगाते हैं, जब कोई सूजन वाली या अंदरूनी ब्लीडिंग हो गई है या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से कि आपके वेसल्स ओपन है, तो उसको नैरो करके वो जो उसका बंद करना है, मुंह बंद करना है या उसका शटिंग करना है, वो शटिंग की जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है ब्लड वेसल की। तो उसका जैसे ही मुंह बंद होता है, उसका डायमीटर क्लोज हो जाता है, तो उसको ऐसे आगे ब्लीडिंग या आगे वहां पे सूजन बढ़ने के चांसेस जो रहते हैं या फ्लो जो रहता है वो शट हो जाता है, और उसके वजह से जो हुआ है उतना ही वो स्टेबल रहता है। और हमारे बॉडी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ये केयर लेता है कि वहां से सूजन बाहर निकाल के इम्प्योर ब्लड में भेजा जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी की वजह से ऐसा लगता है कि अगर मैं ठंडा लगा दूं या ठंडा ये करूं तो मुझे सर्दी खांसी हो जा सकती है। अभी मैं हमारे वर्चुअल सेशन में या ऑनलाइन सेशन में इसलिए बताता हूं सर कि आप ठंडा अभी इस सीजन में मत लगाएं, क्योंकि हम रूटीन हम एक दूसरे को नहीं देखते, हम लोग फिजिकली एग्जामिनेशन आपका नहीं कर पा रहे, सेंसिटिविटी के बारे में हमें आपको पता नहीं है। जो हम सेंसेशन हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करते कि ज्यादा या कम है। कभी कभी डायबिटीज वगैरह जिन लोगों को होता है उनके सेंसेशन कम होते हैं, तो अगर उन्होंने ज्यादा टाइम ठंडा लगा दिया या बर्फ ज्यादा टाइम लगा दिया तो उनको भी उसकी वजह से फ्रॉस्ट बाइट मीन्स आइस का भी जलना होता है, आइस बर्न भी हो सकता है। और अगर गर्मी वाला ज्यादा मीन्स गर्म पानी ज्यादा लगा तो उनको उसके वजह से भी बर्न होता है। तो इसके लिए मैं मेरे सेशन में बताऊं कि जो आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको फायदा हो रहा है, वही गर्म चीज या फिर वही ठंडी चीज बर्फ या गर्म पानी से, गुनगुने पानी से चेक करना आपको अच्छा है कि जिसकी वजह से नहीं होगा। गर्मी का ये होता है कि जब आप किसी भी पुरानी इंजुरी में या पुराने प्रॉब्लम में गर्म से सिकाई करते हो या हॉट फर्मेंटेशन करते हो, तो उसी डायमीटर, उसी ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ता है, वहां के मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंशन कैपेसिटी उनकी बढ़ती है, उनका लचीलापन बढ़ता है, उनका सपलनेस बढ़ता है, नर्व का भी सपलनेस बढ़ता है। टेम्परेचर ग्रो होने के वजह मसल फाइबर्स अच्छी तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं, और जो जकड़न है, जो पुल हुआ है या जो फिर यहाँ पे स्ट्रेन लगा है, उसमें आपको इजीनेस, सपलनेस लगता है और वो कम होने के चांसेस लगते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी गर्म लगाना या हीट थेरेपी करनी है तो हम जरूर बोलते हैं कि आप हीट थेरेपी इससे कीजिए कि गर्म पानी से कीजिए, कि उसके वजह से आपको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा रिपेयर होने की प्रोसेस शुरू हो रही है। और आपको गर्म पानी या हीट थेरेपी करनी तो 48 आवर्स के बाद ही, आपको जब भी कुछ लगता है उसके बाद, रीसेट इंजुरी के बाद 48 to 70 आवर्स के बाद लगाना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा वो तकलीफ ना हो उसकी वजह से। तीसरी बात, आपको ड्राई हीट की जगह पे आपको मॉइस्ट हीट लगानी चाहिए। मॉइस्ट हीट में जो गर्म पानी की थैली से पानी से सिकाई करते हैं, ना कि आपके जो इलेक्ट्रिक पैड आते हैं उनसे। इलेक्ट्रिक पैड भी अच्छे बुरे हैं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके मसल पहले से टाइट है, उसके अंदर भी पानी है, तो आप अगर मॉइस्ट हीट दोगे तो वो पानी, वो सेल्यूलर लेवल मेंटेन रहती है, बनी बनाए रहती है। लेकिन अगर आप हीट की इससे करते हो, हीट पैड से करते हो, जो अंदर का मॉइस्चर है मसल के अंदर का, वो भी हीट पैड की वजह से ड्राइनेस में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे और आपकी जकड़न बढ़ेगी, वहां पे और आपका स्टिफनेस बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि मॉइस्ट हीट, जो गुनगुने गर्म पानी की थैली या फिर हाइड्रोकोलेटर पैक्स या हीट पैक भी होते हैं जो आप ओवन में रख के कर सकते हैं, उससे चलेगा, क्योंकि उससे मॉइस्चर चला जाता है। अगर आप हीट पैड से भी कर रहे हो तो पहले उसके ऊपर थोड़ा सा आप वैसलीन लगा दीजिए या थोड़ा सा आप उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा दीजिए, और उसके बाद कीजिए, तो आपको ये मॉइस्चराइजर की वजह से अंदर से हीट डायरेक्टली ड्राई नहीं होगी, आपको उससे तकलीफ नहीं होगी। जो मॉइस्चर आपके स्किन के ऊपर है उसको ही वो एब्जॉर्ब करेगा और आपको हीटिंग आ जाएगी। और ये सारी दोनों, आप ठंडे से या गर्म पानी से कंप्रेशन कर रहे हैं, कोल्ड कंप्रेशन या हॉट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो वो 10 से 15 या मैक्सिमम 20 मिनट पे ही करना है, एज पर योर कंफर्टेबल एंड योर सेंसेशन लेवल, नहीं तो आपको बर्न हो जाएगा। और ये टेम्पररी मेथड से पेन कम करने के लिए, इससे क्योर नहीं होगी, इससे आपको पूरी तरह से जो आराम होने वाला है वो नहीं होगा। ये टेम्पररी उस टाइम के लिए पेन कम करने के लिए और आपकी जो स्टिफनेस है वो कम करने के लिए रेमेडीज है। दिस इज कॉल्ड होम रेमेडीज, दिस इज नॉट अ यू कैन परमानेंट रेमेडीज। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि 8 महीने पहले मेरे फ्रोजन शोल्डर हुआ। हाँ जी सर। हाँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे को गर्म पानी शुरू कराया। हाँ जी सर। फिर उससे फर्क नहीं पड़ा, दूसरे के पास गया, उसने बोला ठंडा पानी से करो। हाँ, तीसरे के पास गया तो बोला ये करो। मैं कंफ्यूजन हो गया, मैंने बंद कर दिया, फिर एक्सरसाइज से ही ठीक किया उसको। हाँ सर। तो आपने जो जवाब दिया है वो एकदम राइटली कहा है कि भाई 48 आवर्स तक की कोई भी चोट है तो ठंडा पानी के लिए इमीडिएटली, और जो पुरानी होती है तो गर्म है, तो ये थोड़ा एक और उसका इम्पैक्ट भी जो आपने समझा है क्रीम मॉइस्चराइज लगा के, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड फॉर एवरीबॉडी। यस सर, यस सर, यस।
Sandeep ji, we have one question from Miss Priscilla Castellino. I don't, sorry if I mispronounced your name. Priscilla Castellino. Priscilla Castellino, yeah. Yes, madam. Please ask him the question. नमस्कार मॅडम. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. नमस्कार नमस्कार. बोलिए. गुड इव्हनिंग. मला एकच विचारायचं होता, ते तुम्ही सांगितलं ना ग्लुकोजम सांगितलं बघा. हा, ग्लुकोजामाइन. हे मी घेऊ शकते का मॅम? मला या छोट्या स्क्रीन मध्ये ना हे दिसत नाहीये. ठीक, लिहिलंय तुमच्या इकडे स्क्रीन मध्ये लिहिलेलं आहे ऑलरेडी. चॅट मध्ये लिहिलंय बघा, चॅट मध्ये. येस येस शुअर. या येस मॅम, यू कॅन टेक दिस. यू कॅन टेक. मला दिसलं तुम्ही घेऊ शकता. हे घेऊ शकता. किती घेऊ, म्हणजे दिवसातून किती घेऊ तसं मी? तुम्ही एकच टॅबलेट घ्या दिवसातून ही, आणि ती पण मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट घेतली पाहिजे. सो यु नो इट विल डिझॉल्व इन युअर ब्लड अँड इट विल इफेक्ट इन युअर बॉडी वेल. रात्री घेऊ नका तुम्ही, सकाळी ब्रेकफास्ट नंतर हे घेत जा. आणि ते मेडिसिन कमी आहे, बेसिकली हे इम्पॉर्टंट मेडिसिन आहे, तर ते एकच मेडिसिन घ्या. जर तुम्हाला सूट झाली तरच कंटिन्यू करा. जर तुम्ही त्यांनी काही त्रास होतोय देन you can stop it and show it to your nearby doctor or your orthopedics. He will adjust your dose accordingly, maybe half, and then he'll continue with you. But the medicine is fine. Vitamin D and glucosamine. Yes. आणि एक मिनिट, मला तेच आता लिहिलेलं मी हीट पॅड घेऊ का म्हणजे बॅग घेऊ म्हणून सांगितलंय ना, तर माझं म्हणजे 10 वर्षाचं दुखणं आहे ना, तर काय करू मी, म्हणजे बॅग घेऊ की काय करू तेच विचार. हीट पॅड मॅम, जे पण जुनं दुखणं आहे किंवा ओल्ड आहे त्यांनी हीट पॅड किंवा तुम्ही हॉट वॉटर बॅग घेतलेलं कधी पण चांगलं. पण त्याच्याबरोबर तुम्ही एक्सरसाइज आणि योगा अँड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज केल्या पाहिजेत विथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, अँड देन दिस प्रॉब्लेम विल बी स्लोली गोज डाऊन. ओके. थँक्यू डॉक्टर. वेलकम मैम. एनी अदर क्वेश्चंस? अनमोल शर्मा जी है. शर्मा जी का कोई क्वेश्चन पूछना है? अनमोल शर्मा जी है. हाँ जी, नमस्कार सर जी. हाँ, अनमोल शर्मा जी पूछिए. नमस्कार नमस्कार, बोलिए. सर मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हूँ, मेरा एक्सीडेंट 2012 में हुआ था सर. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन है या यस. हाँ बोलिए. मेरा जी D8 और D9 में चोट है, फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन हो गया था सर. हाँ जी सर. हाँ बोलिए. तो उसके बाद में रैप कंटिन्यू चालू है, और क्लिपर और शूज पहन के मैं वॉकर के सारे गली में घूम भी लेता हूँ सर. हाँ जी सर. हाँ हाँ. जो अपना पैरेलल बार होता है उसमें खड़ा होता हूँ ना सर, हाँ, तो पैर मतलब ज्यादा टाइम नहीं रुक पाते, मतलब रुकते हैं लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रुक पाते. एक मतलब वाइब्रेशन सा आता है, मतलब अकड़पन सा आता है. तो उसके आगे का प्रोसीजर मेरे को मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं? अनमोल जी, मुझे तो पहले आपका पूरा केस देखना पड़ेगा इसके लिए जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं, लेकिन जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन बताई उसके ऊपर मैं एक बात आपको बोलूंगा. अभी जो सुरेश सर को व्हाट्सएप भी किया मैंने, फोटो वो देख सकते हो आप, अगर आपको मिल जाए तो. हाँ जी सर, जरूर मैं देख के आपको बताऊंगा. अभी जो है आपको एक बात अच्छी है कि आपके पैर में वाइब्रेशंस आ रहे हैं. पहले ये वाइब्रेशंस नहीं आते थे, बराबर है? हाँ जी, पहले तो बिल्कुल 2.5-3 साल तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट था सर, ऑपरेशन हुआ था ना, बराबर. तो वाइब्रेशन आ रहा है, इसका मतलब पहले ग्लास के अंदर कुछ भी पानी नहीं था, लेकिन अभी ग्लास के अंदर पानी आना शुरू हो गया है. तो इसका मतलब है आपको एक स्टिमुलेशन या आपको एक रिफ्लेक्सेस आना शुरू है. जैसे हमें गुदगुदी होती है हाथ में या पैर में जब हम कोई कांटे से चुभते हैं सर. हाँ जी, तो इसका कांटे बराबर है. तो इसका मतलब है पहले कुछ नहीं था, तो एटलीस्ट अभी कुछ तो आने लगा है. इसका मतलब है कि आपको सेंसेशन वापस आ रहा है. तो ये आपके लिए पहले तो एक तो खुशी की बात है, अच्छी बात है, इसको बुरा मत मानिए. जब भी ऐसे सेंसेशन आते हैं उसके ऊपर आप कोशिश कीजिए कि आप 15 सेकेंड या 30 सेकेंड खड़े रह सकते हो, ताकि आपकी ड्यूरेशन और ताकत भी बड़ी पड़े. और आपको जो पैरेलल बार में चढ़ा रहे हैं, स्टैंडिंग करवा रहे हैं, उनको बोलना कि आपके नी और आपके हिप जो है वो लॉक सही तरीके से हो. भले कैलिपर हो, लेकिन आपको वहां पे सपोर्ट होना चाहिए. या फिर कोई अच्छा सा सपोर्ट लो, जैसे स्टूल आसपास या चेयर आसपास रख के आप खुद के हाथ के कंट्रोल से वहां पे 15 से 30 सेकंड ज्यादा खड़े रहिए. जैसे आपको थकावट लगती है वाइब्रेशन के बाद, फिर आप धीरे धीरे चेयर में बैठिए, लेकिन ये आपको कम से कम 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ऐसे जब करेंगे, जब आपका 5 से 10 मिनट का स्टेमिना हो जाएगा, फिर आप आराम से खड़े रह पाओगे. और उसके बाद असिस्टेंट डिवाइसेस से, जैसे कि क्रचेस है, स्टिक से, एल्बो क्रच है, उससे धीरे धीरे चलना शुरू कर सकते हैं. ठीक है. आपकी जो इंजुरी लेवल है उसमें आप चल सकते हैं, लेकिन आप दौड़ नहीं सकेंगे, ये मैं बोल सकता हूँ अभी, लेकिन चल सकेंगे और आराम से धीरे धीरे वगैरह चल सकते हैं. तो आपका रिहाब अच्छा हो सकता है. आपको भी कैल्शियम लेने की जरूरत है, विटामिन D3, विटामिन B12 और बाकी के जो आपकी जरूरतमंद दवाई है
वो सारी आपको लेने की जरूरत है, उससे हो जाएगा। अभी देखिए किसी किसी लोगों को ये भी सेंसेशन नहीं आता, लेकिन आपको आना शुरू हो गया, तो मे भी साल भर में या 2 साल में आप आगे चल भी सकते हो, और ये कैलिपर वगैरह भी धीरे धीरे निकल जाएगा आपका, लेकिन आप क्रचेस के साथ, आर्म क्रचेस या इसके साथ आप चल पाओगे, तो ये अच्छी बात है। एल्बो के सारे सर, दोनों एल्बो लेके और व्हील चेयर पे बैठ के थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करता हूँ स्टैंडिंग करने की, लेकिन आप ही उठ पाता हूँ। हाँ जी, तो उसमें क्या है, जैसे कभी कभी पैर पीछे, कभी कभी जाते हैं, ज्यादा नहीं, पीछे चले जाते हैं बैक। हाँ जी, नहीं देखिए वो बैक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके अभी आपकी जो थाइज है, फ्रंट वाली थाइज, उसमें ताकत नहीं है, क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग में इतनी ताकत नहीं है, तो वो भी जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपका पीछे जो पैर जाना है वो भी कम होगा और आप स्ट्रेट रहोगे, और उसके बाद आप आराम से चल भी सकोगे। कैलिपर में ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी इमीडिएटली निकल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके कैलिपर के साथ तो आप चल पाओगे, और जैसे ही इसमें ताकत आनी शुरू हो जाएगी भगवान के इससे आशीर्वाद से आप तो मिनिमम सपोर्ट से चल पाओगे, और फिर आप एल्बो क्रचेस वगैरह पे आराम से चल पाओगे। थैंक यू सर। ओके, तो ये अच्छी बात है, और आप करवाते रहिए आपका रिहैबिलिटेशन, आपके फिजियोज जो भी वहाँ पे डॉक्टर है उनको कॉपरेट करके सहकार्य करते, और ज्यादा आप उसको ना उसका अगर 1 घंटे कर रहे हो तो 2 घंटे की एक्सरसाइज कराओ, या 1.5 घंटे की एक्सरसाइज कराओ, और उसको जल्दी यूज करो ताकि आपको रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन स्टिमुलेशन भी सर मैंने लिया है 3-4 हाँ, महीने, हाँ। अभी 2 महीने से तो मैं घर पे आ गया क्योंकि मैं बाहर ही था सर। हाँ जी, हाँ जी, पैराशूटिंग की ट्राई कर रहा हूँ सर के लिए। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसी के लिए, इसीलिए स्पोर्ट्स चुना जी, क्योंकि एक्सरसाइज तो मेरे को रैप तो करना ही पड़ता है सुबह शाम। हाँ जी, हाँ, हाँ। तो फिर मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी साथ साथ में हो जाए, क्योंकि उसके लिए भी, तो इसलिए ये क्वेश्चन था जी सर मेरा। नहीं नहीं, ये अच्छा है, और आप अच्छा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा और थोड़ी उसमें हिम्मत और आप करेज दिखाओ और एक्सरसाइज करो, और आप शायद 1.5 साल और 2 साल के बाद हमें यहीं पे आपकी स्टोरी बताओगे कि जिसमें आप पूरे ठीक हो गए हो। एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर यू। शुरुआत हो गई आपके, उसके ऊपर अभी आप काम कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू अनमोल जी। ऑल ऑफ अस विश कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, बिल्कुल जैसे अनमोल जी ने कहा, वी ऑल विश कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आएंगे मैडम, सब मिलने आएंगे, आपके उधर एकेडमी में भी आएंगे सब। मेरे पापा जी भी बोला कि तू चलना एक बार, मैं चलूंगा साथ में। और अभी मैं दुकान में बैठ जाता हूँ 2-3 घंटे, वो कमरे लगा रखे हैं और थोड़ा चिनाई का काम करवा रहे हैं घर पे। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। हो जाता है मैडम जी, तो इसलिए बहुत मैडम जी 6-7 साल हो गए लगे हुए कंटिन्यू, कभी किधर कभी किधर, एक्सरसाइज भी फिजियो भी, मतलब पूरा समझो कि दिमाग पूरा भरा पड़ा है, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने का मन करता है कि कुछ पूछे, आगे बढ़े आगे बढ़े। अनमोल जी आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, सिर्फ टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू मैडम। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन मैडम? एक सिर्फ प्रसाद जी का एक क्वेश्चन है कि आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं स्लीपिंग पोजीशन पे, कोई टिप्स की किस तरीके से हमें सोना चाहिए, जो आपने थोड़ा सा जरूर बताया था पहले, उस पे अगर जनरल पॉइंट्स। प्रसाद जी, अगर आप कैमरा पे है तो आप ऑन कीजिए कैमरा। मैं अभी मोबाइल से आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन हम लोग आपको खुद हमारे फेसबुक पेज पे या यूपीसी का जो इंस्टाग्राम पेज रहेगा उसके ऊपर कौन सी स्लीपिंग पोजीशन होनी चाहिए ये मैं दिखा पाऊंगा। जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैंने उसी के इसमें प्रिपरेशन में मैं हूँ, तो अगर वो मुझे मिलता है इमीडिएटली तो मैं आपको जरूर इमीडिएटली बता दूंगा। जस्ट अ मोमेंट। मुझे लगा ही था कि ये क्वेश्चन आएगा आज मैम। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ में हमें इनकलकेट करना चाहिए। बिल्कुल यस एक्चुअली आपको ना हमें नॉर्मली हमारे करवट पे, दोनों करवट पे, लेफ्ट और राइट पे सोना चाहिए। अगर आप खाने के बाद सो रहे हो तो आपका पहला पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टमक अगर ऊपर आता है तो हमारे गैस्ट्रिक जूस को अगेंस्ट ग्रेविटी सिक्रेट होना पड़ता है, तो उससे डाइजेशन में भी दिक्कत होती है। तो जब भी आप सो रहे हो तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि आपको अगर सोना है तो मोस्टली आप आपके करवट पे, लेफ्ट करवट पे, तकिए के सारे लेफ्ट करवट पे सोइए, जिससे आपको इजीनेस हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो सेकंड आपकी करवट रहेगी वो मोस्टली आपकी राइट करवट होनी चाहिए। 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जब भी आप कन्वर्ट करते हो टर्न, तो उसमें आपकी जो पोजीशन होती है वो मोस्टली आपकी अगर ये रहती है तो अच्छा रहेगा, राइट साइड होनी चाहिए।
इसके बाद आपको तीसरी जो रहेगी वो उसमें आपको पीठ के बल सोना है। जिनको जिनको बैक के नीचे ऐसा कर्व आता है या आपकी बैक आपके बेड को टच नहीं होती है, तो उन लोगों ने पैर के नीचे, जैसे कि आपकी थाइस की जो ये है पोजीशन है, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल तकिया रख के भी आप सो सकते हो, या फिर दोनों पैर आपके पास लीजिए और उस डायरेक्शन में भी आप सो सकते हो, और जिसको आपको बहुत फायदा होगा उससे। आई थिंक संदीप जी जो आप बता रहे इमेजेस बता रहे ना, वो इमेजेस हम बना के यूपाका नेचुरल थेरेपी के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे हम पोस्ट करते हैं। श्योर, क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे मिल नहीं रहा है, अभी इसमें इतने फोटोज है कि उसमें मिल नहीं रहा है इमीडिएटली। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम सर, हम कल अगर मिलता है तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आपको फिर से बुलाएंगे। नहीं, और संदीप जी अपनी वेबसाइट पे भी अपन डाल देंगे, और हाँ जी सर, ये जो है ना सोशल मीडिया पे डाल देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। हाँ, तो कई लोगों का डाउट है, कोई कैसा सोता है, इससे आधा प्रॉब्लम तो कई लोगों का इससे दूर हो जाएगा। यस यस, इसमें स्लीपिंग पोजीशन में आपको जो तकिया भी यूज करना है वो कौन सा वाला यूज करना है, उसका साइज क्या होना है, उसका भी डायरेक्शन आपको रहेगा। तो ये हम जरूर करेंगे, ये हम लोग वी आर इन द प्रिपरेशन, हम इसमें प्रिपरेशन में ही है। आपको बैक एक्सरसाइजेस, आपको डेली रूटीन वाले एक्सरसाइज और ये क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, मैं और सुरेश जी। तो वी विल ट्राई इट, इवन ऋषिता इज हेल्पिंग इन दैट टू अस, so we will definitely come as early as possible on the Facebook and Instagram of our page. Okay, so much sir. That will be very helpful, सबके लिए helpful रहेगा बिल्कुल। Yes yes yes. जी सुरेश जी, if you have any question. हाँ, मेरा सिर्फ ये व्यूअर्स के लिए ये जवाब है। बेसिकली जब हम लोग स्ट्रेचिंग के लिए जाते हैं, वी सजेस्ट टू गो फॉर स्ट्रेचिंग, बट कैसा होता है कि लोग विदाउट वार्म अप स्ट्रेचिंग करने चले जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, आपको जब स्ट्रेचिंग बोला गया है, जैसे कि आपका बैक स्टिफ है या फिर आपका अगर कोई भी पोर्शन स्टिफ लग रहा है आपको, तो आपको पहले अपने जो शरीर है उसको थोड़ा सा वार्म करना है। वो वार्म अप कर सकते हो या तो विथ एक्सरसाइज, अगर आपके शरीर में ज्यादा ही कुछ पेन हो रहा है विथ स्टिफनेस को लेके, देन आपको वो पोर्शन को थोड़ा सा गर्म करके फिर आप स्ट्रेच करिए, बट वो इंडिविजुअल पार्ट को आप स्ट्रेच करिए, ना कि एकदम से आप डायरेक्टली जाके झुक जाइए या फिर जाके डायरेक्टली अपने हाइपर एक्सटेंशन कर दिया। क्योंकि ज्यादातर जो केसेस आते हैं डॉक्टर संदीप के सामने, मेरे सामने, वो यही जो है क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं डायरेक्टली चले गया, मैंने ज्यादा स्ट्रेच कर दिया और खिंचाव आ गया मेरे बॉडी पे, तो मसल टेयर होने के चांसेस रहते हैं और अंदर बल्ज निकलने के चांसेस रहते हैं। तो आपके बॉडी को थोड़ा सा वार्म रखना जरूरी है उस दौरान। चलो थोड़ा वॉकिंग या और थोड़ा रनिंग कर दिए तो भी ठीक है स्ट्रेचिंग के पहले। हाँ बिल्कुल, आप स्ट्रेचिंग जब कर रहे हो उसके पहले थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा आप रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे तो भी चलेगा। जिनको जॉगिंग और ये वेट की वजह से पॉसिबल नहीं, वो लोग वॉक करें, हल्का हल्का बॉडी को पहले 25 डिग्री स्ट्रेच कीजिए, फिर 50 डिग्री, फिर 75, फिर 80 एंड देन 100, नॉट इमीडिएटली गो फॉर फुल स्ट्रेचिंग। तो उसकी वजह से आपको मसल टियर है, मसल पुल नहीं होगा और कोई तकलीफ भी ज्यादा नहीं होगी आपको, और उसके वजह से जो बैक में क्रैम्प आना या सडनली आपको कॉन्ट्रैक्ट में स्पाजम वगैरह, मसल पुल होना होता है, वो भी कम होगा। अगर आप धीरे धीरे भी आपके हाथ पैर में भी अगर मूव करते हो तो उससे वजह से भी आपका बॉडी टेम्परेचर, आपके हार्ट रेट एक ऑप्टिमल लेवल पे रेज होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में सर्कुलेशन और गर्मी आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी रिफ्लेक्स देती है कि यस मुझे, मीन्स आपका ब्रेन रिफ्लेक्स देता है कि मुझे अभी ये एक्सरसाइज करनी है और इसके लिए स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट जो अभी सवाल पूछा था, प्रसाद जी को अनम्यूट करेंगे। प्रसाद जी। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये है आपके स्लीपिंग पोजीशंस जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख रही है तो ऑन द स्क्रीन। हाँ, तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि देखो पिलो की पोजीशन भी बहुत सारे गलत लेते हैं, तो पिलो की भी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत बार हाथ ही नीचे लेता हूँ ऐसे। यस, इसीलिए आपको नेक वगैरह का भी पेन होगा। और इसमें अगर आप पोजीशन देखोगे तो आपका जो नेक का जो हॉलो पोर्शन होता है उसको सपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग उल्टी तरीके से लेते हैं, जैसे नेक को सपोर्ट नहीं होता, सिर्फ हेड को होता है। और आपके कंधे भी हमेशा आपके पिलो के नीचे होने चाहिए। जिस भी पोजीशन में आप सो रहे हो, जैसे लेफ्ट में सो रहे हो या राइट करवट पे सो रहे हो या आप पीठ के बल सो रहे हो, तो आपके कंधे पिलो के नीचे होने चाहिए। जिनके पिलो के ऊपर रहेंगे उनका पोस्चर फिर ऐसा होता है। तो ये नीचे रहने के लिए आपको नीचे और स्ट्रेचिंग उसमें रहने चाहिए, ताकि आपका
स्पाइन और नेक नॉर्मल रहे। तो ऐसे सारे छोटी छोटी चीजें हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे पर्सनल पेज पे भी होगा, तो आप वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। ओके, काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। पेट के बल नहीं सोना है, हमेशा याद रखिए। सब लोगों को, जितने भी हैं, बच्चों से लेके बूढ़े तक, आपको पेट के बल नहीं सोना है। वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन लगता है, क्योंकि हमें पेट को जब सपोर्ट मिलता है तो हमें सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। लेकिन आप उस पोजीशन में जब सोते हो तो ग्रेविटी भी पुल करता है, आपका स्पाइन भी पुल करता है, और हम बेड के अंदर घुसते हैं ऐसे, तो उसके वजह से आपको ज्यादा तकलीफ होती है, आपका स्पाइन भी इस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है। और जब आप इसमें रहते हो तो आपको आगे वाला प्रोलैप्स या आगे वाला इंटरवल डिस्क का प्रॉब्लम होना, लंबर लॉर्डोसिस का, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत बढ़ते हैं। इसलिए पेट के बल कभी मत सोइए, डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है वो। हाँ, सिर्फ कोविड पोजीशन में अभी लंग्स के फंक्शंस अच्छा होने के लिए पेशेंट को कंपलसरी इस पोजीशन में सुला रहे हैं, ताकि उनके जो बैक साइड ऑफ द लंग्स है वो पूरे फूले, हवा वहां तक जाए, और फिर वहां से भी आप उनको अच्छी तरह ऑक्सीजन मिले, और उनका जो ड्रेनेज है, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, कफ सिक्रेशन है, वो बाहर निकलने के लिए उनको पेट के बल सुलाया जा रहा है। तो उसके लिए ठीक है, थेरेपी के लिए ठीक है, लेकिन बाकी इसके लिए मत सोइए। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, मतलब नॉट क्वेश्चन, अगेन सर सेम टिप्स ऑन इफ यू कैन गिव कि हमें वॉक कैसे करना चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, सिटिंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए, और वॉक कैसे करना है। वॉक कैसे करना चाहिए इस वे, और स्टेप्स कैसे होने चाहिए। आई थिंक ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। वॉकिंग हाँ, Yes. वॉकिंग इज अगेन, सी, अगर आप कोई एक्सरसाइज कार्डियो वगैरह के लिए कर रहे हैं तो उसका वॉकिंग आपको ब्रिस्क होना चाहिए, थोड़ा स्पीड आपकी जो नॉर्मल लेवल है जॉगिंग से उससे थोड़ा कम, और वॉकिंग लेवल से थोड़ा फास्ट, ये होना चाहिए। लेकिन जब भी आप कोई वॉकिंग करते हो तो आपका हील पहले लगना चाहिए, देन आपका मिड फुट एंड देन टो। तो उसका जो ये है, वो स्ट्राइक ऐसा होना चाहिए, हिल, मिड फुट एंड टो, हिल, मिड फुट एंड टो। तो आप जब चलते हैं तब आपको पता है आपका पहला टोज नहीं लगने चाहिए। बहुत सारे लोग टोज पे चलते हैं, तो ऐसे वो जब चलते तो आपको दिखेगा कि वो घोड़े की तरह ऐसे उछल उछल के चल रहे, तो वो गलत है। जब आप हिल के बल चलते हो तब आप स्मूथ चलते हो, पहले आपका हिल, देन मिड फुट एंड देन हिल। इसको हिल टू टो पैटर्न बोलते हैं, जो नॉर्मली है, जो हमारे इंसानों के लिए नॉर्मल है, उस तरीके से हमें चलना चाहिए। अगर मुझे डायग्राम या कुछ मिला तो मैं आपको इमीडिएटली बताता हूँ। बैठना जो है वो हमें बैठना है 90 डिग्रीज में, ये डिग्रीज में हमें ऐसा ही बैठना है चेयर पे 90 डिग्रीज में, जहाँ पे आपकी बैक को पूरा सपोर्ट मिले, और आपका वजन जो है वो आपके बैक पे ना आते हुए आपके बटक्स पे आए या आपके थाई पे आए। समझ रहे हैं आप? आपकी जो बटक्स है और थाई है, उसके लिए हमारा स्पाइन वेट बेयरिंग के लिए बनाया नहीं गया है। हमारे बटक्स और हमारा हिप का जो इशियल बोन बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम बैठते हैं, तो आपको कभी कभी अगर आप हार्ड चेयर पे या इस पे बैठते हो तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है, आप 1-1.5 घंटा बैठने, उस हिस्से पे ही आने के लिए भगवान ने बनाया। वो फ्लैट भी है और उसके ऊपर कोई बोन और डिस्क नहीं है, या कोई डिजेनरेशन होने के चांसेस नहीं है, खतरा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब बैठते हो तो 90 डिग्रीज में, जैसे मैं अभी भी बैठा हूँ, आप पूरे देखोगे 6:15 बजे से 7:40 तक हुआ है, मैं एक स्ट्रेट 90 डिग्री में बैठा हूँ। तो उसी डायरेक्शन में आपको बैठना है, कि जिसमें आपके हाथ भी 90 डिग्री रहे, आपके कंधे 90 डिग्रीज, और स्ट्रक्चर वेल फॉर्म इरेक्ट है। और आपके पीछे, अगर आपने मुझे भी देखा तो मेरे पीछे मैंने एक टॉवेल का रोल थोड़ा सा मोल्ड करके पीछे रखा है, is a bed sheet rolled and turned, so I'm getting that lumbar curve also properly maintained, supported, and my upper back also, so I can maintain ये 2 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए अपनी पोजीशन। संदीप जी, इस तरह से बैठना है। संदीप जी, आज के डिस्कशन से मुझे समझ में आया कि हमको प्रायोरिटी बेसिस पर एक तो किस तरह से सोना चाहिए लोगों का, एक बैठने का और ये वॉकिंग का, और ये पिलो वगैरह के जो है 4-5 इंपॉर्टेंट इश्यूज जो जनरल हर लोगों को तकलीफ है। हाँ जी। तो आप और डॉक्टर सुबेश और आपकी टीम के साथ उनको इमीडिएटली वीडियोस वगैरह करके सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पे चीजें डाल दीजिए। हाँ जी सर, हम लोग का एक यही है कि आगे अगर ये लॉकडाउन और ये ऐसे बना रहता है तो हम लोग एक सीरीज के साथ आएंगे, अर्गोनॉमिक एडवाइसेस फॉर डेली एक्टिविटीज एंड वर्क स्टाइल। इसमें आपको क्या सही करना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे सोना है,
ये सारे की जो ऑप्टिमल लेवल जो साइंटिफिकली प्रूवन वेज है, उसी प्रूवन वेव्स में हम लोग बताएंगे, और उसके आपको एक्सरसाइज पिक्चर्स वगैरह हम लोग सारे वेबसाइट और आपको पर्सनली भी ईमेल पे हम भेज देंगे जो हमारे अटेंडीज है उनके लिए। क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं लेट के, तकिया हाथ पे नीचे रखकर, सामने टीवी चालू है, पैर ऊपर है, ये सब उनको थोड़ा इन बच्चों को वगैरह लोगों को पहले से गाइड करेंगे तो 40-50 का पहुंचने के बाद में इनको तकलीफें कम होगी। हाँ जी सर, जरूर, और करनी भी चाहिए फॉर द बेटर लाइफ। यस। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Yes, sir. Any other question from anyone? Yes, Neha ma'am. सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। शांतनु समंता जी का क्वेश्चन है। सर, माय मॉम इज सफरिंग फ्रॉम कार्पल टनल सिंड्रोम। Yes. Can you suggest any exercise and is it curable? Is he can come on camera? शांतनु जो कैमरा पे आ सकते हैं क्या? Yes ma'am. शांतनु हाँ जी कैमरा पे है मैम, नेहा मैम। शांतनु जी आपकी मम्मी है, उनके हाथ में यहाँ पे स्वेलिंग है क्या? ज्यादा स्वेलिंग है या हाथ में ज्यादा पानी का ठहरा होता है क्या? नहीं, स्वेलिंग नहीं है, बट उनको कुछ घर का काम करने नहीं होता है, पेन होता है। अच्छा, तो वो रेस्ट पे रहती है तो उनको आराम होता है। राइट। तो एक तो पहले तो उनको ना आप यहाँ पे कार्पल टनल का सपोर्ट आता है, वो यूज करवाने के लिए लगाइए, अगर उससे फायदा होता है। उनके शीट के अंदर स्वेलिंग है, मसल का जो शीट होता है, कवरिंग है, उसके अंदर स्वेलिंग होने की वजह से आता है। तो इसमें एक्सरसाइज और इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ट्रीटमेंट से। थोड़ा टेंस का जो मैंने अभी बताया था स्पाइन केस में भी, उससे भी किया जाता है। जैसे वहाँ का स्वेलिंग कम हो जाएगा और पोजीशन सही रहेगी तो उनको ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, अगर वो स्वेलिंग हाथ के अंदर भी ज्यादा सॉलिड हो गई है, तो कभी कभी उनको डॉक्टरों को थोड़ा सा छोटा सा एक ऑपरेशन करके यहाँ पे वो जो स्वेलिंग वगैरह उसमें रिलीज करके, टेंडन रिलीज बोलते हैं, कार्पल टनल रिलीज, 15 या 20 मिनट का ही वो प्रोसीजर है, ज्यादा नहीं है। और कुछ उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़े। उसके बाद इनका ये जो ये है प्रॉब्लम्स है कार्पल टनल का, वो कम हो जाएगा। जो हाथ में मूंगी हेवीनेस लगता है वो, और उन्होंने सॉफ्ट बॉल की एक्सरसाइज जो होती है वो करनी चाहिए। जो सॉफ्ट बॉल होता है उससे फिंगर की और रिस्ट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसकी वजह से होगा। मैंने हाथ में स्वेलिंग इसलिए पूछा था कि बहुत लोगों को वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, हाथ में स्वेलिंग होती है। तो उनको एक्चुअली नेक पे स्वेलिंग है। अगर नेक के भी स्वेलिंग है नेक पे, तो उनकी अगर वो मीडियन नर्व है जो कंधे से ऐसे करके हाथ के अंदर यहाँ तक जो नर्व आती है उसके ऊपर प्रेशर होता है, तो उनका एक छोटा टेस्ट होता है एनसीवी एंड एमएनसी, जो मोटर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में सेंसरी नर्व का कंडक्शन होता है। वो चेक करके फिर डॉक्टर साहब आपको सही बताएंगे कि इनकी कहाँ प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो उनको आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, न्यूरोलॉजिस्ट, हेलो, न्यूरोलॉजिस्ट और स्पाइन स्पेशलिस्ट, वो उनको सही में उनकी कंडक्शन करके आपको बता सकते हैं। कुछ दवाई से भी अगर प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो नो नीड टू डू एनी ऑपरेशन और एनी सर्जरी। तो मैंने क्यूरेबल प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाए थे, बट उन्होंने सजेस्ट किया लाइक काफी पुराना प्रॉब्लम है, लाइक अराउंड 2 to 3 years। तो डॉक्टर ने बोला मेडिसिन से ठीक हुआ है तो ठीक है, बट मेडिसिन से उनको साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, तो ही टोल्ड कि ऑपरेशन करो, बट शी इज नॉट रेडी फॉर ऑपरेशन। मैम आप अगर उनको कन्विंस करेंगे ऑपरेशन के लिए, अच्छा है, छोटा ऑपरेशन है, और आप हैंड सर्जन से ही ऑपरेशन करवाइए। No spine surgeon, no neurologist, they will take care of nerve, but when you are doing it should be with the hand surgeon only and specialist। इसमें थोड़े एक्सरसाइज वगैरह से पहले फर्क होता है क्या? देखिए अगर 2 to 3 ईयर से उनको प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने बोला है कि अगर कोई भी ऑप्शन नहीं तो उसके लास्ट में ऑप्शन सिर्फ सर्जरी होती है। छोटी माइनर सर्जरी करके कट करके उनको वो टेंडन रिलीज कर देंगे तो शी विल बी ऑल राइट, और उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। यस मैम, आप आपके यहाँ पे जो भी हैंड सर्जन रहेगा उनसे मिलके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ शी वांट्स हैंड सर्जन रादर देन द न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, थैंक यू, वेलकम मैम। मैम एनी अदर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चंस। डॉक्टर सुवेश जी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड कि हम हमारे सेंटर पे इस तरीके से नेचुरल ट्रीटमेंट्स से ये जो इश्यूज है, स्पाइन के इश्यूज हो गए
अपर लिम्स लोअर लिम्स के इश्यू हो गए, वो वहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेचुरल वेज, एंड किस तरीके से आप डॉक्टर संदीप जी किस तरीके से हमारे सेंटर पे किस तरीके से वो चीजें ट्रीट करेंगे, एंड प्लीज कंक्लूड दिस। का नेशनल थेरेपी सेंटर बेसिकली यही मोटिव से जन्मा है कि वी आर डेवलपिंग अ कंप्लीट रिहेबिलिटेशन सेंटर देयर, जिसमें हम जो है वो ओवरऑल जो जैसे कि लाइक मसल रिलैक्सेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग, कोर कंडीशनिंग एंड considering all the major issues related to spinal cord, related to knee and each and every joint of the body, हम उसको वहाँ पर रिकवर करते हैं and in a natural way, in a physical and physiotherapy and other therapies including other therapies। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर आपको ओवरऑल ट्रीटमेंट मिला जाता है, जिसमें आपका कंप्लीट रिहैब जो पीपल से कि नहीं भाई एक बार इंजरी हो जाती है देन इट इज इम्पॉसिबल टू कम अप एंड प्ले इट टू बैक, एज इन हम वापस से नॉर्मल नहीं बन सकते हैं अपने जैसे हम पहले लाइफ जीते थे वैसा नहीं हो सकता, बट दैट इज अ रॉन्ग मिथ। आजकल जो मेडिकल साइंस है, जो नेचुरल जो साइंस है, वो इतना एडवांस हो चुका है कि वी हैव क्रिएटेड miracles out of it। हमने जो बेड रिडन थे for 3 years 4 years, we have cured that, we have good result in that। वो लोग आज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं। तो we have set examples जहाँ जो हमारे सेंटर पे जाके जो कंप्लीट रिजल्ट और कंप्लीट रिकवर हो चुके हैं। So that is Upaka Natural Therapy Center, that is our result। and natural way में जब आप जाते हो तो there are 0% chances of side effects basically। नहीं तो हम generally when we think about surgery or something like एक myth आ जाता है कि नहीं कुछ side effect होगा क्या, but when we go to treat it naturally there are 0% chances कि आपको side effect होगा अगर आप properly कर रहे हो। कुछ ऐसा implication होता है but जो side effects होता है it is not worth noticing। तो यही हाँ Correct, I think we should close down now। जी, anything जी, so we shall conclude our session। Dr. Sandeep जी, thank you so much for joining us। वेलकम 3 मैम। days आपके बहुत यूजफुल सेशन था, एंड आई एम श्योर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है जो आपने इतने सारे टिप्स दिए, छोटे छोटे टिप्स दिए, वो अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना जरूर शुरू कर देंगे। थैंक यू उत्तम सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। and thank you Dr. Sush। yes Yes, Neha ma'am, we have one session which is not able to complete last time, that is the lower limb। जो हमें मेल्स और ये है उसके हिसाब से हम अलग लेंगे, क्योंकि then we are getting short time for our question and answer। So might be this session will be taken next week or as per our scheduling for the next week, and then we'll definitely finish that also with all the participants as early as possible to us। Okay, so thank you from my side। Okay, bye bye, good night everyone। Thank you Rabta। Welcome ma'am, welcome। Yeah, thank you everyone। thank you sir। thank you ma'am। thank you Suresh। Conclude the session।